Hey folks, get ready for the chase. 163 is what HCC Reds require to register victory and to lift to the title of RCL year 2022. Ball 1, Asif Rasool to Adil Kohli. Asif Rasool goes and bows to Kohli, and Kohli stands tall, cutting that one, but straight to point for no run. It's a dot ball to start with. 163 is what they require. Akhil Bande is the batter alongside Adil Kohli out in the middle. There is a slip in place, then backward a point, cover point, Cilia cover, then there is long off. Oh, look at that turn, right hand money Asif Rasool on that occasion, but he keeps it out towards the Cilia cover for no run, and with that delivery it's two on the trot, 2 dots on the trot to be precise, and HCC Reds are yet to get underway. Nazir, स्वागत दूसरी पारी में और 163 का पीछा कर रहा है ये गेंद और इसको हवाई रास्ता देते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और यहाँ पे पारी शुरू हो चली है दूसरी छक्के के साथ। स्कोर का खाता खुलता हुआ HCC रेड्स का 6 रन बगैर नुकसान के। आसिफ रसूल है गेंदबाज और आदिल कोहली जो आज बल्लेबाजी का प्रारंभ कर चुका है, और एक आकर्षक, विश्वसनीय और बेहतरीन शुरुआत की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये गेंद भारत 6 गेंद हालांकि बेहतरीन तरीके से वहां पर गेंदबाजी करते हैं, लगातार अपनी गेंदों में परिवर्तन करते हैं। ये देखते हैं कि शुरुआती क्षणों में एक दबाव बनाने की आवश्यकता, और यदि उसमें सक्षम हो पाते हैं, शुरुआती क्षणों में एक विकेट मिल जाती है तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर और रोमांचक स्थिति वाला ये मुकाबला होगा। 6 रन HCC रेड्स 163 बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये गेंद भारत 6 गेंद अप मिडल पे आते हुए अंतिम समय में अपने आप को संतुलित करते हैं, तिरछे बल्ले के साथ दिशा दे दी बगैर किसी रन के। 6 रन 5 गेंदें हो चुकी हैं पहले ओवर की बगैर नुकसान के। आपको याद होगा 162 रन बनाए थे निर्धारक 20 ओवर में, और 163 रनों का विजयी लक्ष्य है इस समय HCC के सामने। इस बार अच्छी गेंद मिडल स्टंप पे उसको निकाला, वहां पर शानदार शतक, निश्चित तौर पर प्रयास जरूर किया और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। तो इस प्रकार से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 बगैर नुकसान के HCC रेड्स की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए 163 रन बनाने हैं और रमहल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का खिताब अपने नाम सजाने के लिए। 7 for none after an over. 7 for the loss of no wicket after the completion of over number 1. Kohli out in the middle, and Akhil Bande will be facing ball 1 from this end, and we'll have to wait and watch who's going to bowl from other end. And it looks like Bilal is going to bowl. We are going to be in over number 2. 163 is what they require to win this match. And it's going to be Said Sagar to bowl from other end. Said Sagar, another terrific pacer. He's from Budgam area. He's Budgam Express. Said Sagar will be bowling, and he'll have to sledge in between. He literally tries to up the tempo of their rival side, but it won't be easy. But at the moment Sagar will be bowling, and on strike will be right-hander Adil Kohli again. It's 7. He keeps the strike with that single. He will keep the strike for over number 2. It's 7 for none. Advocate Hilal, the strike umpire, and Tahir Nabi, the umpire at short scale area. And ball 1 coming up of over number 2. Jalil batted first slip. Then there is second slip in place. Backward a point. Then there is sweeper of cover. Short extra cover mid off on the onside. Short mid on in place. And there is short mid wicket and backward scale leg is in place. With this field, Sagar will be bowling in over number 2. Ball 1 coming up. After keeper, there are 2 slips. And then backward appoint the captain of the team, Zuhur Peter, is there. Under sweltering conditions, second over coming up. HCC Reds in pursuit of 163 from their allotted 20 overs with 10 wickets in hand. Should be an interesting battle between the bat and ball here at Gully Kupwara. Beautiful center. It is mesmerizing center here at the center. And in the meantime, Sagar will begin second over of the innings. Adil Kohli on strike. Sagar comes in and bows to Adil Kohli, and Kohli straight away goes on to the back foot and playing it back to the ball for no run. And Adil Kohli shuffling across onto that run and keeps it back to the ball of an over run. 7 for none. We are in over number 2. 163 is what HCC Reds require, and it's because of that an expensive over sent in by Jangilun at the fag end of the innings. That over costed HCC Reds 22 of an hour.
आज बिल्कुल और इस समय निर्णायक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ और 7 रन अभी तक बना लिए हैं बगैर नुकसान के, क्योंकि शुरुआती क्षण है और ऐसे में इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। इस ओवर में सईद सागर जो कि गेंदबाजी का तैयारी करते हुए और उनके सामने होंगे आदिल कोहली संभवतः, और एक आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में 163 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार ये गेंद हवाई यात्रा देते स्ट्रोक को ऊंचा लंबा और गेंद सीमा रेखा से बाहर, वहां पर क्षेत्र रक्षण बने दर्शक और निश्चित तौर पर अंपायर का इशारा 6 रनों का दूसरा छक्का इस पारी का। इस छक्के के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे जा पहुंचा है दूसरे ओवर में बगैर नुकसान के। तेज तरार शुरुआत और लगातार आदिल कोहली बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। शुरुआती क्षणों से एक दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है आदिल कोहली द्वारा, और अब गेंदबाजी पे प्रभाव जिस प्रकार से लगातार प्रहार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे चाहते होंगे कि जो जबरदस्त प्रहार किया जाएगा शुरुआती क्षणों में, और ऐसे में गेंदबाज पे दबाव की स्थिति जो है उसमें सक्षम हो पाएंगे। 13 रन दूसरे ओवर में सईद सागर है गेंदबाज, सामने रहेंगे आदिल कोहली। इस ओवर में अगली बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका दौड़ना शुरू किया उनकी ये गेंद बाहर अच्छी गेंद स्टंप पे आती हुई हालांकि निकाला उसको, 1 रन पूरा कर रहे हैं वहां पर सटीक स्टंप्स पे थ्रो पड़ता खतरे में पड़ सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1 रन और खाते में। और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों को। शुरुआती क्षणों में विकेट नहीं खोना चाहेगी टीम HCC रेड्स हंदवारा की। 14 रन है इस समय कुल योग दूसरे ओवर में, और आपको याद होगा 163 रनों का विजयी लक्ष्य मिला है रामहाल क्रिकेट लीग के इस फाइनल निर्णायक मुकाबले में HCC रेड्स को और खिताब अपने नाम करने का। 163 they require from their allotted changes. Current run rate is 9.33, 33 to be precise, and after that decimal you have to read out 3 individually. It is 14 for the loss of no wicket. We are into the second hour, halfway down into the second hour, and if we look at the attendance, we got a wonderful attendance around the park, and I can say we get attendance like that we have on Eid prayers and on angry mobs that hit the roads. And in the meantime, we are in over number 2, ball number 4 coming up. Said Sagar will be bowling and Akil Bande for the first time will be facing Badgam Express. Said Sagar 14 for none. HCC Reds in pursuit of 163 to lift the Ramhall Cricket League title for the first time. In comes Sagar and bows to Akil Bande, and Bande trying to work it onto the onside, doesn't succeed, and ball goes only as per a short long leg is concerned. No run, their score remains 14 for the loss of no wicket after 1.4 balls. HCC Reds require 149 from remaining 110 deliveries. Akil Bande is yet to open his account, and Adil Kohli is on to 14 of 9 balls, and Parashivot was 14 of 10 balls. Great attendance, a wonderful atmosphere, cricket at its best. HCC Reds locking horns with the Victoria Cricket Club Kupwara, and you can't get better than this, we can't get better than this. Kupwarians locking horns, all the Kupwara's flair and spice into this one. And in the meantime, Sagar will be bowling. On strike is Akil Bande, left-hander, waits for Sagar. Oh, has knocked him off! Cleaning him up! Bamboozle up! First blood is drawn and Akil Bande is walking back to the pavilion and absolutely pumped up. Sagar and his team, they're on cloud 9 straight away, getting rid of one of the batters. It is Akil Bande to walk back. He gone for naught, gone for golden duck, 14 for 1 HCC Reds. शुरुआती क्षणों में जिस विकेट की आवश्यकता थी अंततः वो सईद सागर ने दिलवा दी और अखिल पांडे को सपोर्ट करके किया चलता। पहले विकेट का पतन होता हुआ और HCC रेड्स की टीम इस संकट की स्थिति में 14 पे पहला नुकसान उठाना पड़ा। 163 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। निश्चित तौर पे मुकाबला एक संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ता हुआ और ऐसे में क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए चाहते हैं कि संघर्षपूर्ण विश्वसनीय प्रदर्शन देखने को मिले और ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में। जुड़ जाइए जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस क्रिकेट के महासंग्राम का जो कि गालिजू के इस खूबसूरत मैदान में चलता हुआ। HCC रेड्स 163 का पीछा कर रही है लेकिन अखिल पांडे आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। सबकते 62 वहां पर नए बल्लेबाज आए हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है।
जी हाँ, बासित डार और उनके साथ इस समय अगर बात करें, हालांकि अखिल पांडे आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। आदिल कोहली और एक और दिग्गज बल्लेबाज बासित डार, अच्छा खासा अनुभव है उनके पास, लेकिन इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, कड़ी परीक्षा होगी इन परिस्थितियों में गेंदबाज द्वारा। और मैं समझता हूं मनवर यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है, आत्मविश्वास रखना होगा, थोड़ा सा समय बिताना होगा विकेट पे और उसके बाद 10 स्ट्रोक्स लेने होंगे यदि इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो। Yeah, of course, straight away they need a partnership. HCC Reds, they know that they need to mountain to climb. They required 163. Nama total in front of their side. And they got depth in the batting, no doubt about that. But cricket is the game of glorious uncertainties. You never know when and how it's going to change its course. But the need of an hour is to stick to the basics. Work on the basics, use different tactics against each and every newcomer at the crease. Now it's down to Basit Dar. Won't be easy for Basit, but Sagar comes in. But Gama Express, what a delivery! Cranking up and outside the off stump and swinging in air, and he lets it go through. Very watchful Basit Dar on the very first ball. From Sagar to Basit, and Basit and leans into the drive, but very watchful, lets it go through in the end, and deciding against it. Going against his move, he was trying to drive that one, but saw the ball swinging in air and moving outwards, lets it go through to the center ends. The wicketkeeper over comes to an end. It is 2 done, 14 for the loss of 1. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अखिल पांडे आउट होकर पवेलियन लौट के। धन्यवाद नरीम लोन, डिजिटल स्टार के जी हमें सम्मानित करने बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहेगी पूरी कमेंट्री टीम जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। और इस समय संघर्षपूर्ण, आकर्षक, विश्वसनीय मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ आसिफ रसूल के हाथ में है गेंद और निश्चित तौर पर पारी का तीसरा ओवर लेकर के तैयार। विक्टोरिया कपवारा की ओर से आपको याद होगा 162 रन बनाए हैं, 163 रनों का विजयी लक्ष्य। और इस समय नाबाद बल्लेबाज बीच मैदान में आदिल कोहली और बासित डार और आसिफ रसूल अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर। पहली गेंद बस बाहर, अच्छी गेंद, करारा स्ट्रोक और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इसमें लगातार विकेट गिरने के बाद भी जिस प्रकार से प्रहार कर रहे हैं, आत्मविश्वास दर्शाता है वहां पर बल्लेबाज का। और इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता 20 पे जा पहुंचा 2.1 के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। It's going Kohli, Kohli. Crowd going berserk. Kohli, Kohli. But it is indeed, certainly this man is making an impact. He is announcing himself and he is making an impact straight away. Third six to him. It's 20 on the board. And Kohli waiting for Asif Rasool. Asif goes and bows to Kohli. And Kohli stepping bit leg side, trying to open up upside. Chance of a run out. But another chance gone begging. But Kohli, he seems to be in a hurriesome situation time and again. He's in a hurry and he wants to finish it off in style, but it won't be easy. I told you 163 is a mammoth to climb. It is a Mount Everest to climb in a final match. Won't be easy. दबाव की स्थिति है और इन परिस्थितियों में थोड़ा सा आत्मविश्वास, संयम, मानसिक तौर पे मुकाबले में बने रहना होगा। और इब्रार अली फरे का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए। सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते हुए, हमारा मनोबल बढ़ाते हुए और इसी प्रकार से जेके स्पोर्ट्स टाइम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन लेकर के आपके सेवा में उपस्थित। फिलहाल कुल योग की अगर बात करें 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 के बाद आदिल कोहली 21 पे 11 गेंदों से और बासित डार 0, 1 गेंद का सामना किया। खाता खोलना है तो ऐसे में किस प्रकार से यहां से शुरुआत होगी, एक बड़ा लक्ष्य भेदना है। 163 रन बनाने हैं, अगली गेंद को निकाल दिया। वहां पर गेंद की गति क्षेत्ररक्षण से काफी तेज और सीमा रेखा से बाहर। एक और चौका इस समय HCC रेड्स हंदवारा के लिए आता हुआ। 25 जा पहुंचा है कुल योग। बासित डार के बल्ले से निकलता हुआ रहमानों के रंग में रंग चढ़ता हुआ और गालिजों का पारा का यह मैदान आग उगलता हुआ इसमें बीच मैदान में। 25, 1 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद सिंगल और चौका करें। कुल मिलाकर 3 गेंदों से 11 रन आ चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद लोन बसारत अपना प्यारा विचार देते हैं। अगली गेंद इस बार इसको निकाला, वहीं पे पास में फील्ड हुई बगैर किसी रन के। तो लगातार इस समय ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले के, शुरुआती क्षण पावर प्ले प्रगति पे, लेकिन पावर प्ले का बेहतरीन प्रयोग करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाजी इन परिस्थिति में। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, शानदार वापसी वहां पर आसिफ रसूल द्वारा और निश्चित तौर पर बल्लेबाज को वहां पर पास में लौटका है सैयद अयाज।
बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विचार, आपके विचारों और भावनाओं की कदर करते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचता हुआ। इस बार अच्छी गेंद अंतिम समय में उसको सिर्फ बल्ले से टकराने पर दिया, दिशा भर दे दी थी, लेकिन उस और खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। संकेत ओवर पूरा हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल योग की अगर बात करें 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर बासित डार और आदिल कोहली की जोड़ी बीच मैदान में 163 रन बनाने हैं इस महा मुकाबले को जीतने के लिए। Quarter 50 on the board for the loss of a wicket. We have seen the back of one of the batters from HCC Reds Handwara. And we have seen the back of Akhil Bande, the man from Handwara town. He was unable, he was undone. He was sent packing by Said Sagar Badgama Express. Over number 4 we are going to be in. And we'll have to wait. Yeah, Badgama Express is going to continue from forehand, and on strike will be Adil Kohli. But this man, HCC Reds, need him badly out in the middle. And crowd is going berserk. Crowd is absolutely scintillating here at the centre. And in the meantime, Sagar will be bowling 2 slips in place. Conversation going on. Bilal feeling in the slip area. A slip is in place. There is Jalil Butt. Then there is Gully in place. Backward a point. Sweeper cover. Short extra cover mid off. On the onside, short mid on in place. Short mid wicket is in place. And backward Skellig. With the spill, ball number 1 of over number 4 coming up. And about the crowd, they're beating the drums at the moment. They're whistling. Oh, look at Sagar. Sagar is going on in between. Sagar comes in. That's a good ball, and batsman on that occasion surprised with that abrupt bounce of the deck. It surprised the batsman. The ball cranking up a bit, and all of a sudden, abruptly, it rises almost up to the hip height, and he manages to keep it down towards the silly cover for no run. Dot ball. We are in over number 4. 24, quarter 50 on the board for the loss of 1. Chase underway. HCC Reds require 163. A mammoth total. A magnanimous one on the board. That won't be easy to break through. And if they manage to get themselves over the line, I believe that HCC Reds are going to be crowned with that crown here at the centre of Gullies of Kupwara. They're going to be the champions of this very league, but won't be easy to beat Victoria Cricket Club Kupwara. Oh, Sagar is going on. Loud shot for him, and that run, a straight one. He was trying to punch at it, but beaten all ends. So wicketkeeper collects the ball with ease. Score man's 24 at the cost of 1. We are in over number 4. Nazir, your comments? How it is unfolding at the moment, and what do you think? The way Adil Kohli is batting, does he need to change his gears, or he is doing well the way he's going at the bowlers at the moment? देखिए, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, आदिल कोहली जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन इन परिस्थितियों में अंतिम समय तक का गेंद पे नजरें टिकानी होगी, तब जाकर वे स्ट्रोक खेल सकते हैं। इस बार अभी सबसे बाहर लपेटा हुआ उस और पीछा किया गेंद का, गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए एक चौका मिलता हुआ वहां पर आदिल कोहली को, और स्कोर आगे बढ़ता 29 पे जा पहुंचा चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। सईद सागर इस समय गेंदबाजी करते हैं, और उनके हर कदम के साथ इसमें शोर गूंजता हुआ दर्शकों का, वातावरण कमाल का। और ऐसे में मुकाबला बीच मैदान में HCC रेड्स की टीम 163 रन का पीछा कर रही है विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा के विरुद्ध। 29 रन चौथे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा, तापमान कमाल का, वातावरण और दर्शक का बीच मैदान में क्रिकेट के प्रति उत्साह और जुनून इस समय बीच मैदान में दर्शता हुआ, और क्रिकेट की महानता इस समय बीच मैदान में, खूबसूरती का प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में होता हुआ दोनों बल्लेबाजों द्वारा। आदिल कोहली के लिए सईद सागर, ये गेंद और इस बार फुल टॉस लगे स्टंप पर, एक प्रहार किया जा रहा है, अपील की जा रही है निश्चित तौर पे उत्साह में ज्यादा। लेग स्टंप को छोड़ते अंपायर एडवोकेट हिलाल पर कोई प्रभाव नहीं, नकारा इसको। रनों की गति में कोई वृद्धि, स्कोर अभी भी टिका 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शारिक का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। एक संघर्षपूर्ण और कड़ा मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ, और निश्चित तौर पे इन परिस्थितियों में इस प्रकार की आवश्यकता है बल्लेबाजी की, और उसका प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। इस ओवर में आखिरी बार 29 रन। एक बार फिर सईद सागर राइट आर्म ओवर द विकेट, उस छोर से इस बार कदमों का इस्तेमाल, फिर बाहरी किनारा, हवाई रास्ता, लेकिन उस और खिलाड़ी जब तक गेंद उनके पास पहुंचती कारपेट के सहारे लुढ़कते हुए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने प्रयास करते हुए 1 रन और खाते में जोड़ लिया, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे जा पहुंचा HCC का। 1 विकेट के नुकसान पर HCC रेड्स हंदवारा, जिन्हें के इस मुकाबले को 163 रन बनाने हैं। यदि वो यहां से इस मुकाबले को जीतते हैं तो निश्चित तौर पर रमहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का खिताब उनके सर सजेगा।
In between, Adil Kohli is off the strike, and we will definitely remember our sponsors, and we'll have to thank them from the core of our hearts. And in the meantime, Anthem Sports India, Fashion Feast, the Real Estate Papur, Shining Star Papur, and MHM multi-brand fashion store, Agri Clan Magam. In the meantime, Sagar will be bowling. On strike is Basadar, another prolific prospect with the bat. He's on strike for HCC Reds Handwara, down the leg side, very down the leg side, wide it is. One more run added to the tally. With that single run, score moves on to 31 for the loss of a wicket. We are in over number 4 after my last ball coming, and I would definitely love to extend warm welcome to Just Bukhara back in Magam area. In the meantime, it is 31 after 3.5 balls. Slip in place. Jalil Bhatt is there. In comes Said Sagar last time to Basadar. Crosses umpire and goes to Basadar, and Basadar punched to that one, but straight a short extra cover for no run. Now comes to an end. It's 3 done. 31 for the loss of 1. We have seen the back of Akil Bande. Left hand is sent packing, and after that it is down to Adil Kohli and Basadar. 163 is what they require. There's still 132 runs behind what could be the magical figure to touch and to lift to the title, to be crowned with the champions of RCL 2022. Bright sunshine out here, mesmerizing and beautified scenes around the park, picturesque scenes. And if we look at the sky, it is clear skies, blue skies, and clouds on that portion of the center, far away end. It makes a wonderful sight of this very center. This is just like we're in the lap of paradise. And you can also contribute to Take a Sports Time by sending in digital token and coupon of love through digital stars. Asif Rasul is going to continue. Nazir 163 is a mammoth total in a final match, a match worthy of the final. It's a nervy game always. It's a pressure game, and under certain circumstances, if these two experience all the rigors and take them over the line, they can be rest assured that their cricket is in safe hands. देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आसान नहीं रहेगा इस लक्ष्य को भेदना, क्योंकि इन परिस्थितियों में दबाव की स्थिति जरूर रहेगी। बड़ा मुकाबला है, फाइनल निर्णायक का, और ऐसे में बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। ये अलग बात है कुछ दिशाहीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जिसके चलते कुछ छक्के देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ यदि आप गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करते हैं, तो निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति बनी रहेगी। आसिफ रसूल इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंदा, हालांकि उसको निकाला, वहां पर एक रन पूरा कर रहे हैं विकेट कीपर के हाथ में जब तक गेंद पहुंचती, गिलियां बिखेर दी, लेकिन सुरक्षित तेज दौड़, अच्छी तालमेल और का परिचय देते दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया और एक रन के साथ स्कोर को आगे पहुंचाया। 32 एक विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 131 रन बनाए हैं। 95 गेंदें बची हैं और 9 विकेट हाथ में। निश्चित तौर पे हालांकि अभी तक इस मुकाबले की अगर बात की जाए, पलना भारी है इसमें बल्लेबाजी का, HCC रेड्स हंदवारा का, लेकिन इन परिस्थितियों में एक विकेट की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक विकेट चाहिए यहाँ पर, और यदि आसिफ रसूल उसको दिलाने में सफल रहते हैं तो मैं समझता हूँ एक आकर्षक रोमांचक स्थिति, दबाव की स्थिति दोबारा लौट सकती है इस मुकाबले में। 32 एक विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा। आदिल कोहली 27-17 गेंदों से और बासिडार 4-6 गेंदों से। आसिफ रसूल है गेंदबाज, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए, अच्छी खासी गेंदबाजी का प्रदर्शन अभी तक का देखने को मिला है। हालांकि उनके पास रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रयोग बेहतरीन तरीके से, मिश्रण विविधता अपनी गेंदों में लाने के लिए वे जाने जाते हैं। ये गेंद बार मिडल स्टंप पे आती हुई गेंद को घुमाया उस और खिलाने को मौका नहीं, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका वहां पर आता हुआ HCC रेड्स हंदवारा के लिए, और इस चौके के साथ ही बासिडार के बल्ले से निकलना हुआ ये दर्शनीय स्ट्रोक 4 रनों के साथ कुल जोक पहुंचाया HCC रेड्स का। 36 एक विकेट के नुकसान पर 4.2 के बाद 8 पे पहुंचे बासिडार। उनका व्यक्तिगत योग 8-7 गेंदों का सामना किया, और 27 पे नाबाद 17 गेंदों से आदिल कोहली, जो कि आज पारी का प्रारंभ करने आए थे अखिल बांडे के साथ, लेकिन अखिल बांडे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, निराशाजनक प्रदर्शन, और आउट होकर पवेलियन लौट चुका है। एकमात्र सफलता जो हाथ लगी अब तक का HCC विक्टोरिया कुपवारा के लिए। इस बार फिर इनसाइड आउट सीधे हाथ में, जीत चलिए बासिडार को भी किया चलता, और इसी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, बात कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, अंततः वही हुआ, और बासिडार के थमाने के बाद वापस लौटे पवेलियन। दूसरा विकेट 36 पे 2 ओवर। It is a big loss for HCC Reds, losing Basidar as early, and HCC Reds can't believe their hard luck for today. But Basidar is walking back slowly and steadily back to the dugout, and Newman walks into the middle, and Newman is whacking into the middle, and won't be easy. As usually, I keep throwing out these words that won't be easy.
but we'll have to. It looks like Asim Bashir is walking in. Another star from North Kashmir. Asim Bashir. He's a Tangmog-based cricketer. He's got a well fan base in the valley. He walks into the middle, and Asim Bashir will face the likes of Asif Rasool. But this pair is quite important for HCC Reds. Well, Asim Bashir is quite a batsman, and alongside him Adil Kohli, two of the prolific stars out in the middle for HCC Reds. Both need to put their heads down, stitch up partnership, at least give it a try, and they need to try from their level best. They need to show that great presence of mind with the passage of time. Who knows, things can be handy for the two batters out in the middle. But Basida falling onto that turn, got overcautious, and it costed HCC Reds that wicket number 2. That in the likes of Basida. It is a big blow for HCC Reds, but it's quite some achievement for Asif Rasool, removing that danger man out in the middle. It's down to now the two batters. One is Asim Bashir and the other is Adil Kohli. Nazir, your comments. A slip is in place for the newcomer. आसिम बशीर एक और दिग्गज मान्यता प्राप्त बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। बासिडार के आउट होने के बाद आदिल कोहली अभी भी नाबाद है और आसिफ रसूल को एक विकेट की खुराक मिलने के बाद नई ऊर्जा के साथ अच्छी गेंद पूरी तरह से वहां पर छकाया, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। 2 स्लिप के सहारे एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट, दर्शकों का उत्साह इस तरह 7वें आसमान पर। मुकाबला बीच में आरसीएल फाइनल वर्ष 2022 का, और कुल मिलाकर 36 पे 2, 4.5 के बाद गेंदबाजी का दायित्व आसिफ रसूल के पास। एक सफलता उनके हाथ लग चुकी है। 2.5 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडन नहीं, 23 रन खर्चे हैं और एक सफलता। उन्होंने वहां पर 62 को कैच करवाया था और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। आदिल कोहली बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, आसिफ बशीर उनका क्या कहना, लेकिन यहां से एक कड़ी परीक्षा होगी। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर तिरछे आड़े बल्ले के साथ उसको खेला, बगैर किसी रन के कैप थमा दे। ओवर पूरा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पर, और निश्चित तौर पर लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं और ये मनवर तय है यहां पर कि एक संघर्षपूर्ण कांटे की स्थिति इस मुकाबले में बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यामीन शाह, डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित करने के लिए। अपना प्यार और विचार इसी प्रकार से अन्य व्यूअर्स भी अपने डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4 ओवर में 36, 2 विकेट के नुकसान पर आदिल कोहली और आसिम बशीर की जोड़ी समय बीच मैदान में नाबाद। अगर बात करें तो अकील पांडे और बासित डार आउट होकर पवेलियन लौट चुका है। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 36 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 90 गेंदों से 127 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान नहीं रहेगा। दूसरी पारी में विकेट की आवश्यकता और दूसरी ओर साझेदारी की आवश्यकता। तो कुल मिलाकर एक निर्णायक कांटे की टक्कर का मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। Asim Bashir is in and his colleague Adil Kohli, and Educate is having a word with Adil Kohli. In his third is going to be Badgam Express. He will be bowling to Adil Kohli. Kohli is on to, he's on to 28 out of 36. 28 belong to this man, Adil Kohli. What a man! A kind of a dream start he has got today, and he would definitely love to carry on with the same pace. He's trying to score at a rapid pace to take HCC Reds in ascendancy in this all-important cricket match. They're trying to advance. Sagar is the chant from the crowd, but in between Adil Kohli keeps it out towards the extra cover area. Asif Rasool does mop up, but not before the two batters scamper through for a quick single, and Asim Bashir is on strike. Badgam Express will be bowling to Asim Bashir. Tangmud Basid lad is on strike. Score moves on to 37. 29 to Kohli, and Asim Bashir is yet to open his account. He's marking the fresh score from strike umpire Alim Daraf Ali. And I would definitely love to thank two of our sponsors. One is Rafi Wani behind that MHM multi-brand fashion store, and he has announced a 30% off till 31st of this month. And then we are Just Bukhara. Thank you, our proud sponsors, for backing us and making it possible for all of us to provide each and every broadcast to our beloved viewers through JK Sports Time. Good ball right behind the line of the ball, cover the line of ball and playing it back to the ball of an run. And Just Bukhara is a baker shop there in Magamere. In the meantime, the batsman Asim Bashir off his stage has turned the stall onto that one, but Sagar got imbalanced while running through, and he was unable to hold on, and he slipped down quite a bit, but in the end it wasn't any sort of problem, and it isn't bothering situation for him. He seems to be okay. But in the meantime, Badgam Express is operating and Asim Bashir is on strike. HCC Reds losing the wicket of Basidar
as early as they won't have wanted, but they lost him very early in this chase. They would have wanted him to bat on next few overs. Next ball, that's a good ball, and equally to the tusk. 3 minutes only. Chance of a run out. Chance of a run out. Chance of a run out. We'll have to wait and watch. And umpire Tahir Nabi raises the finger. Chant is going on. Sagar, and in between wicket number 3, and Asim Bashir has to walk back. He's gone for duck, and it is the second batter has to walk back without scoring any run. He's unhappy, and he's unhappy with his colleague out in the middle, Adil Kohli, but Asim Bashir has to walk back. He looks in disbelief, but he has to walk back. It is the third setback received by HCC Reds while chasing 163 Nazir. एक और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर आसिम बशीर 0 पे आउट होकर पवेलियन लौटे। 3 गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल पाए, तो इस प्रकार से दबाव की स्थिति समय HCC रेड्स हिंदवारा की टीम के ऊपर, और कुल मिलाकर 37 पे तीसरा विकेट। 3 दिग्गज मान्यता प्राप्त बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए अकील पांडे, उसके बाद बासित डार और अब आसिम बशीर, तो ये 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। कमाल का क्षेत्र रक्षण, प्रदर्शन गेंदबाजी का, और निश्चित तौर पे सारा श्रेय उनके कप्तान को भी जाता है, जिस प्रकार से आज लाजवाब प्रदर्शन किया है न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि अब गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में भी अगर बात करें विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा की टीम का। 37 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद 126 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और 87 गेंदें बची हैं। 8.69 जो आस्किंग रन रेट है। हालांकि क्रिकेट की भाषा की बात करें तो ज्यादा कोई असंभव नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं, निश्चित तौर पे एक कठिन परिस्थिति आने वाले समय में। ये अलग बात है अगर यहां से एक साझेदारी पनपती है तो निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि मुकाबला एक रोमांचक संघर्षपूर्ण स्थिति में आ सकता है। गालिजो कुपवारा का खूबसूरत मैदान सजा हुआ इस अंतिम चरण में, अंतिम सीमा, और इस समय बीच मैदान में ये फाइनल RCL वर्ष 2022 के अंतर्गत 163 का पीछा कर रही है HCC रेड्स हिंदवारा की टीम। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 37 पे इस समय पूरी तरह से पारी डगमगाती हुई 3 चोटी के बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज करीज पर आकिब मीर, एक और दिग्गज बल्लेबाज, मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से जाने जाते हैं, लोकप्रिय है, लेकिन आज कड़ी परीक्षा होगी। और चाहत बैल हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समर्थन डिजिटली हमें सम्मानित करने के लिए। चाहत दलाल बहुत बहुत धन्यवाद, और इस प्रकार से अपना समर्थन देते रहिए। कुल मिलाकर 37 रन, वातावरण कमाल का, आकर्षक, क्रिकेट के समर्थकों दीवाने चारों ओर जहां नजर दौड़ाए जाए, और इस बात का श्रेय है कि क्रिकेट की मानता इस समय बीच मैदान में बरसती हुई। इस ओवर की अभी भी संभवतः 3 गेंदें बची हैं। जी हाँ, 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। 37 रन, और इस समय दबाव की स्थिति, और यहां से इस दबाव को किस प्रकार से बल्लेबाज झेलेंगे ये देखने वाली बात होगी। आकिब मीर क्रीज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आदिल कोहली बीच में बने हुए हैं, 28 रन बनाए हैं, तो यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। एक दबाव की स्थिति रहेगी, और निश्चित तौर पर इस समय कड़ी परीक्षा बल्लेबाज की जहां तक गेंदबाजी का सवाल। Yeah, of course, no doubt about that. Yeah, there is pressure mounting and climbing, and the newcomer just walked in, Mr. Consistent, and Sagar comes in. And those Takimir and Akimir straight away. He's off the mark with that quick single, and score propelled to 38 for the loss of 3. Over number 8 we are in. Sorry, correction comes in. We are in over number 6. Last over of the mandatory power play is on. And it's 38 for 3. A slip gully back with a point. Cover point, then slipper of cover. Short extra cover. And there is long off in place, isn't? I don't think. No, yes, there is wide-ish long off in place. Ishtiyaq Rasool is there. And on the onside, short mid on, short scare is in place. And no man is patrolling behind. 45 degrees on the onside. This is the field set for Sagar. Sagar with ball 5. Adil Kohli on strike. 3 down, HCC Reds on 38. Sagar comes on the ball way outside the aftermath. Webber delivery. Wide it is. 39 for the loss of 3 wickets. Adil Kohli and Akimir are at the crease, and both need to study the ship, reselect their innings, and from here on reselection process should begin, and at a rapid pace, because they need reselection from here on. HCC Reds require 163 and no more total, because they're 3 down or 7 wickets in hand with 40 overs remaining up to this one.
Next ball coming up. We'll have to re-bowl and reload that one because he bowled a right delivery. Weathered one outside off. Next ball comes in. And bowls to Adil Kohli. Kohli trying to go over the top. Beaten all ends of wicketkeeper does well. And on that occasion, luckily, the ball missed to the blade by Whisker. What could have been soft dismissal. Number 4, that is survives that scare. Score remains 38 for the loss of 3 over number 6. We are in last over of the mandatory power play. Well, Adil Kohli tried to provide his side a kind of flyer. And yeah, they got a fly, but they lost 3 wickets. Up front, in comes Sagar. Sagar is going on again. And that one flies straight to fast slip. And look at Jalil Bhatt. Celebration going on. And Adil Kohli has to walk back. And Mr. Consistent is conveying about him what the mockery are made with the bat. What you have done, gentlemen. You need to walk back to the pavilion. It's 4 down. 38 for the loss of HCC Reds in a spot of bother at the moment. Sheikh Nazir. इस समय ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरते हुए और पतझड़ का मौसम माना इस समय लगा हुआ। लगातार अंतराल के मैच विकेट गिरते चले जा रहे हैं और निश्चित तौर पे दबाव की स्थिति इस समय बने हुए। मात्र 38 पे चौथा विकेट गिरता हुआ और ये इस बात का श्रेय है, इस बात को दर्शाता हुआ कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बने हुए और उससे बाहर निकलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए। आकर्षक क्रिकेट इस समय बीच मैदान में और निश्चित तौर पर दाद देनी होगी, प्रशंसा करने होगी सभी क्षेत्ररक्षकों की, जिस प्रकार से विक्टोरिया क्रिकेट क्लब ने शानदार वापसी की है इस मुकाबले में बना हुआ है। And now HCC Reds in a spot of bother. They're in dire straits. They're in tatters. The 4 down. I told you, Nazir, 163 is a mammoth total in a match worthy of the final. And you're 4 down. Now it will take tremendous character from the 2 batters out in the middle to play and to take HCC Reds over the line. But I think from here on, it's going to be, things are gloomy out in the middle for HCC Reds from here on. They need to resurrect their innings. They need to rebuild it. They need to reconstruct it once again. Now they're back into the tatters. This is really unfortunate from HCC Reds perspective, but they will have to take that because 4 of the star kind of batters have been sent packing back to the pavilion. Now it's down to the new pair out in the middle. Let's see how they will apply themselves and how they're gonna adapt to themselves under certain circumstances when they're 4 down. आज बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत था। इस समय आकाश में बादल मंडलाते हुए और मैदान में इस समय HCC रेड्स के ऊपर बादल मंडलाते हुए, और ये दर्शाता है इस बात का कि किस प्रकार से आज लाजवाब विश्वसनीय गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला है। और यहाँ पे आसिफ रसूल को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ और निवेदन होगा आपसे कि आप डिजिटल स्टार्स के जरिए भी हमें सम्मानित कर सकते हैं, डिजिटल स्टार बेचकर हमारा सम्मान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेंट्री टीम द्वारा आपका सम्मानित किया जाएगा, आपका सम्मान रखा जाएगा। तो ऐसे में इस वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, कुल मिलाकर 38 पे 4, 6 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया है गेंदबाजों ने। आसिफ रसूल चले पहली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, और यह है दबाव की स्थिति जो समय बीच मैदान में झलकते हुए। और निश्चित तौर पे कमाल की गेंदबाजी, फील्ड अनुशासित गेंदबाजी। यहां से एक साझेदारी की आवश्यकता है दोनों बल्लेबाजों को। क्या उसमें सक्षम हो पाएंगे, क्या इस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाएंगे? एक दबाव झेलने की स्थिति जो है उससे बाहर निकलना होगा। इन परिस्थितियों में किस योजना और किस रणनीति के तहत बल्लेबाजी करेंगे, ये कड़ा प्रश्न होगा बल्लेबाजों के लिए। ये गेंदबाज लेग स्टंप पर निकाला, उसको 1 रन पूरा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर शानदार क्षेत्ररक्षण, निश्चित तौर पे रन आउट का अवसर हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे वहां पर खिलाड़ी। 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 4 विकेट के नुकसान पर दबाव की स्थिति। 7वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का मोर्चा इस समय आसिफ रसूल के पास। डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं, जीके स्पोर्ट्स टाइम को, और प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, MHM आर्को फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पामपुर, फैशन फीस्टा, एंटर स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का और अपने चाहते व्यूअर्स का भी जो लगातार हमारे साथ बने हुए इस संघर्षपूर्ण क्रिकेट के महासंग्राम और महायुद्ध का आनंद लेते हुए। रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत यह मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। आसिफ रसूल है गेंदबाज और
इसमें लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए और निश्चित तौर पे यहाँ पर कप्तान को भी काफी श्रेय जाता है जिस प्रकार से उन्होंने लगातार अपने गेंदबाजों को स्पेल में आजमाया है। ये देखते हैं कि लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है और आक्रमण की अगर हम बात करें सटीक लाइन और लेंथ के साथ ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण रहा है जिसके चलते इसमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। वहां पर बल्लेबाजों को वहां पर प्रयास किया असफल, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, हालांकि सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को। 1 रन और 39 7वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। जहां बिल्कुल एक क्रिकेट का घमासान चलता हुआ HCC रेड्स हंदवारा और विक्टोरिया क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, और निश्चित तौर पर इसमें क्रिकेट की महानता बीच मैदान में दर्शते हुए आसिफ रसूल। इस बार अच्छी गेंद जगह मिली, निकाला उसको, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। गेंद उनके हाथ से लगने के बाद छिटकी, लेकिन 1 रन और 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 पे जा पहुंचा है और चारों ओर दर्शकों से खचाखची गालिजों का मैदान बना हुआ। क्रिकेट के प्रति उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में। अगली गेंद को निकाला वहां पर 1 रन आसानी के साथ कहना चाहिए। वहां पर अच्छी दौड़ विकेट के बीच में तालमेल का परिचय देते हुए दोनों बल्लेबाज 41 और 42 क्षमा कीजिएगा 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6.5 के साथ, और अभी भी 79 गेंदों से 121 रन बनाने हैं। 9.29 आस्किंग रेट है, तो कहीं ना कहीं हर गेंद के साथ आस्किंग रेट बढ़ता हुआ और इसमें संकट की स्थिति बनी हुई। ये गेंद अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया, निकाला उसको, चहलकदमी करते 1 रन। विकेट कीपर काफी लंबी दौड़ लगाकर जब तक खुद उठाते गेंद को थ्रो करते गेंदबाज के हाथ में 1 रन और खाते में जुड़ता 43 रन। स्थान पर यह है लेखा जोखा अब तक का इस मुकाबले का की स्थिति बने हुई। 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 43 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 9.23 इसमें आस्किंग रेट, और अगर बात करें वर्तमान रन गति की तो धीरे धीरे से जो दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं है। निश्चित तौर पर एक साझेदारी की आवश्यकता है अवश्य तौर पर, और अगर उसमें सक्षम होते हैं आने वाले 5-6 ओवर में तो मुकाबला एक कांटे की टक्कर का हो सकता है। बराबर HCC Reds need reselection from here on. Out in the middle, Shaukat Nabi, and he's like Damien Martin of HCC Reds. Then they got the likes of Mr. Consistent, the southpaw Akimir is in, and these two are going to be crucial and key for HCC Red chase of 163 against Victoria Kupwara. Now at the moment drooping shoulders of the batters of HCC Reds, but in the meantime if we look at the bowling side, they're on cloud 9. They got their tails literally up. They got their tempo up at the moment, and a fresh away is going to begin from far, and will activate in which huge crowd is in, an electrifying crowd around the park, electrifying buzz around the park, chirping going on, whistling going on, in between ball coming up, and we'll have to wait and watch where this one is going. Nazim, what you think? To me this should fly into the orbit. Your comments? बिल्कुल जिस प्रकार से प्रयास करने की मुद्रा में है और बल्लेबाज चाहते हैं कि यहाँ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है और जिस शैली की आप बल्लेबाज है, लेकिन अगर परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां उसके विपरीत है, क्योंकि यहाँ पे 4 विकेट खो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ से संयम आत्मविश्वास जताना होगा और मानसिक तौर पर आपको मुकाबले में बने रहना होगा। Yeah, of course, you need to be in with a chance, physically in. In comes bowler to Akimir. Akimir comes down the track and checking his stroke at the last moment, and Said Sagar is gazing, and you can see they're staring at Akimir. Akimir showing that composure. He comes back to the safety of the crease. But look at Sagar is a different kind of a man altogether. If you remember that gaze against Adil Kachru there in Shalabu Gandarbal area, that was superb, and that taken the social media by surprise on that day. The kind of sledging which were going on, it reminded me of great Sean Tate against Tilak Ratna Dilshan way back in 2011 World Cup, and getting rid of him on the very next ball. He was trying to up the tempo of the battery, lost the composure and gone on the very next ball. Sagar will be bowling on strike as Mr. Consistent Akimir. Right slip is in place, almost at third slip. Jalil Badan Gully, there is a back with a point on the boundary. Shorik Stakaba, in comes Sagar to Akimir, and Akimir lets it go through, lapped along to wicketkeeper again. His exchange of words is going on, and Akimir is showing composure, and Akimir isn't interested in
the comments which were passed on, and if we look at the crowd electrifying buzz around the park, this is something special now. They're putting their hands together. Sagar chant is going on, enchanting the name of Sagar. In between, Sagar will be bowling ball number 3, and on strike will be the same guy, Akib Mir. आज बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता हुआ और विश्वसनीय तौर पर एक आकर्षक और रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में बनी हुई। इस बार कदमों का इस्तेमाल और सागर को कड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या लाजवाब वहां पर ताबड़तोड़ हमला किया आकिब मीर ने और ये दर्शा दिया कि वो क्यों एक महान बल्लेबाज है। और इस समय दर्शक है और क्रिकेट का उत्साह इस समय बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आमिर मलिक। और निश्चित तौर पे सागर की अगली गेंद को जो जिस प्रकार से प्रहार किया और आकिब मीर ने उसका निश्चित तौर पे यहाँ पे कड़ा जवाब दिया। और यहाँ आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, स्टीवर्ट ब्रॉड ने जो स्लेजिंग की थी, उसके बाद युवराज सिंह ने क्या कड़ा प्रहार किया था। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में चलता है। छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ करीब 48 पे जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर। Nazir has shown that composure, and he was teasing him, annoying him and irritating him with the words he was trotting out. He was trying to spit that fire and venom, but this man, equal opposite reaction, Newton's third law applicable. And look at that one, ball flies along on huge deep into the crowd for 6. And to be precise, it gone on the backyard of that very stand and for all the way, and with that half a dozen, score propelled to 49. One share of team 50 is HCC Reds Handwara, and Akib Mir is on to 9 of 8 balls. Shaukat is on to 2 of 3 balls. Said Sagar getting ready to bowl the next one. आकिब मीर और शौकत नबी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में है और कुल मिलाकर अगर मुकाबले की बात करें तो 49 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। आकिब मीर सामना करने के लिए सईद सागर की अगली गेंद का। कमाल का वातावरण। सईद सागर चले सामने वाले छोर से उनकी गेंद आकिब के लिए इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर अंतिम समय में उसको सिर्फ दिशा भर दे दी। ये दिखते हैं खिलाड़ी थोड़ा पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, मना किया। 1 रन और खाते में और उसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 113 रन नबी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। रमहल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का ये अंतिम सत्र, अंतिम चरण और दूसरी पारी समय बीच मैदान में 163 का पीछा कर रही है HCC रेड्स हंदवारा की टीम इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और अभी भी 113 रन बनाने हैं। निश्चित तौर पे कमाल का वातावरण, दर्शकों का शोर गूंजता हुआ हर गेंद के साथ और निश्चित तौर पे क्रिकेट की महानता इस समय बीच मैदान में दर्शक एक घमासान बीच मैदान में चलता हुआ अगर इस मुकाबले की बात करें। 50 4 विकेट के नुकसान पर यह है अब तक का लेखा जोखा। इस ओवर में अगली बार शौकत के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद वहीं पास में अलग रन लेना चाहते थे आकिब मीर और इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा क्योंकि जानते हैं कितना महत्व है विकेट पे बने रहना आकिब मीर और शौकत का। और इन परिस्थिति में यदि विकेट खोते हैं तो निश्चित तौर पर दबाव की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और ऐसे में इस दबाव से निकलना मैं समझता हूं किसी हद तक आसान नहीं रहेगा। ये देखते हुए कि अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए HCC रेड्स हंदवारा की टीम को। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। सईद सागर हैं गेंदबाज और शौकत नबी है उनके सामने। 50 रन बन चुके हैं HCC रेड्स के और क्या वातावरण है। हालांकि धीरे धीरे से आकाश को बादलों ने घेरा हुआ है लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद पे आती हुई इसको निकाला 1 रन के लिए। जब तक उसको गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता 51 पे जा पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। यह पारी का 8वां ओवर समाप्ति प्रगति पर है और निश्चित तौर पर ओवर पूरा हो चुका है। 8 ओवर की समाप्ति 51 पे 4 और अभी भी 6 विकेट हाथ में है लेकिन काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। आकिब मीर और शौकत नबी जिस शैली के बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करनी होगी। विकेट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, विकेट के मजाज को परखना होगा और उसके बाद खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान, सिंगल जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट और मानसिक तौर पर मुकाबले में बने रहना होगा। एक संघर्षपूर्ण आकर्षक विश्वसनीय प्रदर्शन बीच मैदान में लेकर के इस मुकाबले को अंत तक पहुंचा सकते हैं। Can also contribute to JK Sports Time by sending in the digital token and coupon of love. HCC Red chasing 163 with every ball flying to the corners of the ground keeps the hopes of HCC Reds alive. With every wicket falling brings Victoria Kupwara back into the match. This is all about the game of glorious uncertainties. And this is the special game of cricket underway here at the center. Those ebbs and flows, ups and downs, making it mesmerizing, wonderful, unbelievable game of cricket underway here at the center of Gullies of Kupwara. Well, clouds on the sky, sun has gone behind the clouds,
little sunshine is on, but in between we'll have to wait and watch who's going to bowl in over number 9 of the innings. It will be interesting which one will be brought into the attack. At the moment, Shaukat, Nabi and Mr. Consistent from South Kashmir, Southpaw, namely Aqib Mir is in, and these two are going to be key for the chase. And Tahir Nabi, the strike umpire, is having a word with Asif Rasool. My dear colleague, you're wasting too much time. Remember that. You have to pay the fine for it. And who knows? In the death overs, you need to keep 5 fielders inside the 30-yard. And that's going to be something special, and that might be paying rich dividends for HCC Reds Handwara. In the meantime, we'll have to wait and watch. Crowd is enchanting the names of Victoria Kupwara players at the moment, but in between, the two batters out in the middle for HCC Reds to make those 163 runs from their allowed quota of 20 overs. A slip is in place. Now the slip brought in. No, is going to field on the onside, Umas Itu, and there is no slip at all. Is there third man? Yeah, there is a third man. There is a back critter point. Short executive, sweeper cover mid off on the onside. Long on in place. Short mid wicket is in place, and mid wicket drops down to the boundary, and there is backwards Scalig in place. Here goes ball one, and pulling that one in between. Backwards Scalig and mid wicket, and Nasir Kumar puts in the full length dive, but no, well, that's a boundary. Pulling that one with authority. Shaukat Nabi at its best. With that boundary, HCC Reds propelled their team total to 55 for 4, and on that occasion pulling that one with authority and send it down to the backwards Scalig boundary for 4. Zoor Sophie is operating. Is another big fish from the heart of city is operating here. Zoor Sophie again goes away from us. Balls to Shaukat Nabi. And Shaukat Nabi again stands tall, driven, no chance of a run out. But Bilal putting in that full length dive just manages to stop that ball, but can't prevent the two batters from collecting that single with these 56 for the loss of 4. We are in over number 9 of the match. 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए निश्चित तौर पे 107 रन बनाने हैं। 70 गेंदें बची हैं 9.17 के आस्किंग रेट के साथ। इस ओवर में अगली बार जोहर सोफी राइट आर्म ओवर द विकेट, इस छोर से गेंदबाजी लेकर के इस बार अच्छी गेंद स्टंप पर पूरी तरह से स्टंप्स को कवर करते हैं, बैट और पैड मिलाकर रक्षात्मक रूप से रोका बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद के साथ लगातार इस समय अच्छी गेंदबाजी, आक्रमण सही दिशा में सटीक लाइन और लेंथ के साथ, और अच्छी दिशा में गेंदबाजी होती हुई आक्रमण और अनुशासित गेंदबाजी, अनुशासन देखने को मिल रहा है इस गेंदबाजी में, और जिसके चलते बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कपवारा की गेंदबाजी द्वारा। 56 4 विकेट के नुकसान पर चौथी गेंद देकर के ये गेंदबाज लेग स्टंप पर अंतिम समय में इसको हल्के से प्लेस किया। 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए संभव दे जाना चाहेंगे, लेकिन मना किया। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक साझेदारी की आवश्यकता है, और दोनों बल्लेबाज दोनों छोर से इस मुद्रा में लगे हुए हैं कि एक साझेदारी को ऐसे तैसे करके निभाया जाए ताकि इस संकट की स्थिति से अपनी टीम को आगे ले जाया जाए। 57 पे 4, 8.4 ओवर की गेंदबाजी। शौकत नबी 8 पे 7 गेंदों से, राकिब मीर 11 पे 11 गेंदों से। गेंदबाजी ज़ोहर सोफी के पास, अगली गेंद और इस बार फिर उसको निकाला लेग साइड में और चहलकदमी करते। अच्छी रणनीति से लगातार सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते, और निश्चित तौर पे इस प्रकार की आवश्यकता भी है यहां से टीम HCC रेड्स हंदवारा की टीम को। 1 रन और 58 पे 4, 8.5। आखिरी गेंद 9वें ओवर की। ज़ोहर सोफी अपनी गेंदबाजी के मौके पे पहुंचते हुए, और अच्छी खासी रफ्तार है, रफ्तार से पूरी तरह से यहां पर चकमा दिया बल्लेबाज को, और निश्चित तौर पे दोनों बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं एक साझेदारी की। अगर बात करें साझेदारी की, 9 रन अभी तक का 8 गेंदों से आए हैं इस साझेदारी में। आप सबसे बाहर और खड़े खड़े उसको लपेटा, उस और खिलाड़ी उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ ही ओवर भी पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति 59 पे 4। 11 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 66 गेंदें अभी भी बची हैं, और अभी भी 104 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। नवाज जोड़ी आकिब मीर और शौकत नबी। तो कुल मिलाकर आधी पारी समाप्त होने को है, और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, एक कड़ा
प्रश्न होगा, कड़ी प्रतीक्षा होगी जे के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। गालिजू कुपवारा से सीधा प्रसार आप तक पहुंचता हुआ। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम आरको फैन स्टेशन, रियल एस्टेट पांपोर, फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया। धन्यवाद। और अपने व्यूअर्स का भी हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद करना चाहेंगे जिस तरह से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपना प्यार और विचार देते हुए, हमारा मनोबल बढ़ाते हुए। और इसी प्रकार से आपके प्यार और विचार की आवश्यकता, डिजिटल स्टार भी आप हमें भेज सकते हैं और हम प्रतीक्षा करेंगे आपके सम्मान के। और निश्चित तौर पे आप इन परिस्थितियों में आप हमें सम्मान दे सकते हैं। फिलहाल स्थिति की अगर बात करें, इस निर्णायक मुकाबले की बात करें तो 9 ओवर में 59 रन। शेख महराज, बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित करने के लिए। अपना प्यार और विचार बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। और स्थिति वर्धमान की अगर बात करें, मुकाबला इस समय एक संघर्षपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। तेज धूप खिली हुई, वातावरण कमाल का, तापमान अच्छा खासा, और ऐसे में दर्शकों का उत्साह देखने लायक। बीच मैदान में एक संघर्षपूर्ण और कहना चाहिए इस समय घमासान क्रिकेट का चलता हुआ। 9 ओवर में 59 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 6 विकेट हाथ में एचसीसी रेड्स के पास और अभी भी 104 रन बनाने हैं 66 गेंदों से। राइजिंग स्टार, बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल स्टार्स के जरिए अपना प्यार और विचार हमारे साथ सम्मानित करने के लिए। पारी का 10वां ओवर लेकर के तैयार, उस छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। और इश्तियाक रसूल, आसिफ यूसुफ का धन्यवाद। और इसके साथ गनई उमर भी अपना डिजिटल स्टार के जरिए हमें सम्मानित कर चुके हैं। और एक और परिवर्तन, इशनाक के नाम से लोकप्रिय आसिफ रसूल, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर जगह दी, निकाला उसको, लेकिन उस और खिलाड़ी हैं उन्होंने सहजता के साथ फील्ड तो कर लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए 1 रन से। 1 रन और 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इंद्राज राथर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद इट्स जुनैद भी बट उजैर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटली हमें सम्मानित करने के लिए। इंजीनियर खान वसीम भी हमें सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का अपना प्यार और विचार देने के लिए। और इस समय 60 रन बन चुके हैं, 103 रन अभी भी चाहिए, 65 गेंदें बची है, 6 विकेट हाथ में एचसीसी रेड्स हंदवारा के लिए। और बट एहसान भी हमें डिजिटली सम्मानित करते हुए इस बार अगली गेंद लेग स्टंप पर घूम करके इसको मारा, लेकिन उस ओर खिलाड़ी हैं तैनात, उनने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और 61 हो चुका है कुल योग 4 विकेट के नुकसान पर। विक्टोरिया क्रिकेट क्लब के 163 रन बनाने हैं एचसीसी रेड्स को, और अब तक 61 रन बने हैं। 102 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एचसीसी रेड्स को। रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का यह 17 अंतिम चरण फाइनल मुकाबला गालिजू कुपवारा के खूबसूरत मैदान में और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा आप तक पहुंचता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछलती हुई, लेकिन उसको और दिशा जरूर दी थी। 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 1 रन और 1 रन के साथ ही 62, 101 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। धीरे धीरे से प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर गेंदबाजी का प्रयास भी होगा कि यहां से सफलता प्राप्त की जाए। इशनाक इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद बार फिर ऑफ स्टंप पर जगह मिली, उस और शानदार क्षेत्ररक्षा, निश्चित तौर पर जितने भी प्रशंसा की जाए उतने कम। और यहां पर कहना चाहिए कि गेंद को निश्चित तौर पर 4 रनों से रोका और परिवर्तित किया मात्र 1 रन में। 1 रन के साथ ही 63 और अब 100 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एचसीसी रेड्स हंदवारा की टीम को। 63 balls, 100 needed with 6 wickets in hand. Down Shakib Mir and Shaukat Nabi, and umpire Advocate Hilal is having a word with the. We'll have to wait and watch what's going on at the moment. I think the few of the bystanders are within the boundary there. I think so, is it? It looks like the bystanders are within the boundary. Yeah. Right call made by umpire, and I thought out earlier on, I thought that he's going towards that area, and the message was loud and clear that you may leave the field as early as possible because it can create hooks with the passage of time, and it can create a misunderstanding. In that portion, you're within the boundary on that portion of long off area. Nicely done by umpire Advocate Hilal. In between, Ishtiaq Rasul gets ready. Meantime, we will be bowling to Aqib Mir. Aqib Mir on strike. Can Aqib go for that mighty huge hit? Oh no, he keeps it down towards the back for a point. He dabs it in front of point, but look at the fielder, as agile as cat. He comes quickly onto the ball and was trying to hurl it with tremendous sense of urgency, but saw the fielder, but saw the 2 batters, so back into their crease with safety, deciding against it. He lets it go through. So now I'm done on the decade score, man. Static 63 for the loss of 4. Over number 10. Next ball coming up. Ishnag is operating. On strike is Aqib Mir. It is between
It is now again. It is between these two batters, these two cricketers, both from South Kashmir, of the inner edge of the Q1, and luckily getting away with it. What could have been wicket number 5 of that inner edge, and he was saved by the nearest margins on that occasion. Ball after kissing the blade goes down towards the short fine leg area. Wicketkeeper does the mop up, but not before the two batters settling for another single. 64 for the loss of 4 after tennis halfway stage. 64, 99 need. Now they need exactly in double figures, 99 of 60 balls with 6 wickets in hand. Which way this match is gonna go? देखिए, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में अगर यहां से जिस प्रकार से हमने लगातार इस मुकाबले में टिप्पणी की थी कि एक साझेदारी की आवश्यकता है, और अगर यहां से साझेदारी अगले 4-5 ओवर में और रन ये बटोर लेते हैं दोनों बल्लेबाज जो समय बीच मैदान में आकिब मीर और उनके साथ शौकत नबी, तो निश्चित तौर पे मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में और धीरे धीरे से पलड़ा बारी होता चला जाएगा। हालांकि इन परिस्थितियों में अभी भी कहना चाहिए कभी पलड़ा बल्लेबाजी का हावी, कभी गेंदबाजी का, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी तक का कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। प्रयास जरूर किए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाजों द्वारा और अभी तक का किसी हद तक उसमें सक्षम भी हुए हैं। 10 ओवर पूरे, 64, 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट हाथ में है। 60 गेंदें बची है कि आखिरी के 10 ओवर का खेल बचा है। 6 विकेट हाथ में, 60 गेंदों से 99 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए HCC रेड्स हंदवारा की टीम को। विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा के विरुद्ध और रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का ये फाइनल निर्णायक क्रिकेट का महासंग्राम बीच मैदान में चलता हुआ। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या, लगातार दर्शक मैदान में आते हुए और इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। इधर हमारे व्यूअर्स भी लगातार जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच से जुड़े हुए हैं और इस संघर्षपूर्ण, आकर्षक और विश्वसनीय रोमांचक स्थिति वाले मुकाबले में बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं और लगातार हमारे व्यूअर्स भी हमें सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए उनका और हमारे पास वो शब्द नहीं है कि किस प्रकार से उनका सम्मान रखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अब तक का हमारे साथ बने हुए हैं, सम्मानित करते हुए। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 11वां ओवर, गेंदें बची हैं 60, रन चाहिए 99, 6 विकेट हाथ में है। पहली गेंद लेकर के 11वें ओवर की राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बाहर कड़ा प्रहार करने की कोशिश, हालांकि वहां पर एक रन जरूर किया, फील्ड तो कर लिया संभवतः जलील भट्ट ने, लेकिन उमेश से तो क्षमा कीजिएगा 9 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, वहां पर कुछ दिक्कत जरूर, लेकिन एक रन और खाते में जुड़ता हुआ और एक रन के साथ स्कोर आगे जा पहुंचा 65 पे। 98 रनों की आवश्यकता, 59 गेंदें बची हैं और यह दर्शाता है कि किस प्रकार का यह मुकाबला धीरे धीरे से एक संघर्षपूर्ण और रोमांचक कांटे की टक्कर का मुकाबला धीरे धीरे से अंतिम चरण में होता हुआ। यह गेंद इस बार बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, हवाई रास्ता, उस और खिलाड़ी और उन्हें कोई गलती नहीं कि चलिए भैया 5वां विकेट भी आउट होता हुआ और 65 पे 5वां विकेट गिरता हुआ। इस समय HCC रेड्स हंदवारा की टीम आकिब मीर समझते अथवा शौकत नबी आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और आधी टीम पवेलियन लौटते हुए और यहां पे दर्शकों का शोर गूंजता हुआ इस बात का संदेश देता हुआ कि क्रिकेट की महानता और क्रिकेट का रोमांच इस समय बीच मैदान में बना हुआ। It isn't romantic situation for HCC Reds, but it is romantic situation for Victoria Cricket Club Kupwara. Crunchy munchy situation with the ball, not with the bat. But at the moment it is Victoria Cricket Club Kupwara right on top. A new man walks into the middle. Slowly and steadily, Diamond of Kashmir, Mr. Jangilon is in. And now it's down to this man. Can he be the man? This man has taken his side home on multiple occasions this time round in year 2022. But this is going to be another big success if this man lives up to his expectations and takes his side home today. It's going to be another title for his team, and he's representing HCC Reds Handwara here in RCL here at Galizu Kupwara. But Zur Sofi is among the wickets. He got the wicket of Dangerman, that too of Shaukat Nabi, the man who is known for his big hits, those gigantic sixes, but he was denied by some quality bowling from Zur Sofi. A new man, Jack Lone, is in alongside Akib Mir out in the middle. Pressure mounting, climbing on, and 2-3 players surrounding him around there and is conveying a word to him that Jack, you will be tested today. And no doubt about that, it's going to be a testing time for Jack Lone out in the middle. And we got Sajjad Malik, M. Strange, Faisal, Sam Sohail, But Farooq Rai and Ishfaq Dar, then Fahim and Ishfaq Dar and others. Thank you each one of you, every one of you. Thanks a million and billion to each beloved viewer of JK Sports Time.
And this time round we're live from Gullies of Kupwara. We promised it earlier on, and finally we are here at the centre with this great game of cricket. Jack Lone is in, he's on strike. Zoor Sophie will be bowling to Jahangir Lone. Ball one to Jack Lone, goes and bows, and India, and it goes towards the extra cover area. What could have been a soft dismissal of very first ball is coming back for the second. Oh, chance of a run out, but the chance gone bagging. Can you believe Jack Lone of the very first ball driving up initially, doesn't bother to keep it down, but it could have been wicket number 6, Nazir. देखिए इस समय दबाव की स्थिति जरूर रहेगी और इन परिस्थिति में किस प्रकार से जहांगीर लोन बल्लेबाजी करेंगे ये एक कड़ा प्रश्न होगा। और इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी दर्शक का कि वे एक आकर्षक पारी खेले, यहां से अपनी टीम को अंत तक ले जाएं, लेकिन मैं समझता हूं इन परिस्थितियों में आसान नहीं रहेगा उनके लिए बल्लेबाजी करना। इस ओवर में अगली बार जोहर सोफी चले, उनकी ये गेंद अब सबसे बाहर लपेटने की कोशिश, भाग्य चले रहे, हालांकि गेंद का पीछा जरूर किया था, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ और निश्चित तौर पर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। 5 विकेट गंवा चुकी है HCC रेड्स हंदवारा की टीम विक्टोरिया कुपवारा के विरुद्ध। इस समय दर्शक का धीरे धीरे से खचा खची स्टेडियम पर हुआ और गूंजता हुआ उनका शोर, हर गेंद के साथ मानो आत्मविश्वास बढ़ता हुआ खिलाड़ियों का। इस ओवर में अगली बार जोहर सोफी जहांगीर लोन के लिए ये गेंद बाहर लेग स्टंप पर उसको मोड़ा, 1 रन पूरा कर रहे हैं। काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी फील्डर को जब तक फील्ड करते हैं, हालांकि गेंद की गति खुद कम होती हुई, लेकिन 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता निश्चित तौर पर 68 पे जा पहुंचा है। 5 विकेट के नुकसान पर जहांगीर लोन और आकिब मीर की जोड़ी बीच मैदान में, और निश्चित तौर पे काफी कुछ निर्भर करेगा आकिब मीर और जहांगीर लोन पे। हालांकि आकिब मीर जो कि आत्मविश्वास और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं, तो निश्चित तौर पे क्या कुछ रणनीति उनकी रहेगी इन परिस्थिति में, ये देखने वाली बात होगी। और एक कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे गेंदबाज द्वारा। जोहर सोफी जो कि अच्छी खासी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना होगा और उसके बाद गेंदबाजी करनी होगी आकिब मीर और जहांगीर लोन को। इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद कलाइयों के सारे सीधे बल्ले से निकाला, चहलकदमी करते दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ बदलते हुए 1 रन और 69 पे जा पहुंचा। 5 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा अब तक इस मुकाबले का। 163 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और वातावरण इस समय क्रिकेट के अनुकूल, कमाल का क्षेत्र रक्षण इस समय बीच मैदान में और निश्चित तौर पर संघर्ष जो बीच मैदान में चलता हुआ, ये क्रिकेट के प्रति उत्साह और विश्वास को दर्शाता है कि किस प्रकार से क्रिकेट के प्रेमियों, दर्शकों और दीवानों में उत्साह वर्तीता इस मुकाबले को देखने को मिल रहा है। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद और जहांगीर लोन में आउट होकर उत्साह से लबरेज, और आप विजुअल्स देख रहे हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। 6ठा विकेट और जहांगीर लोन में इस समय आउट होकर एक आसान कैच थमा दिया अपने फॉलो थ्रो में जोहर सोफी का। तो 6ठा विकेट और परिस्थितियां गंभीर से गंभीर है HCC रेड्स हंदवारा के लिए। And in the end, it is Jack Lone. He has to walk back to the pavilion without doing anything. It is a big blow for HCC Reds, and now the question arises here that who's gonna finish it off for HCC Reds? Now they're running short of resources. They're 4 down, and now it's all over for me. And somebody wants to go in and finish it off in style. It won't be easy. But Nazir, from here on, it's going to be a testing time. But there comes Bahubali is walking into the middle, and this man Irfan Sheikh, he possesses skills of hitting the ball, and he can hit the ball, each and every ball out of the park. He's having a lot of power in his muscles. He can muscle the ball. But Jack Lone, he was a player of different caliber and class. His pants are leaving the center. Really unfortunate for HCC Reds, but fortunes for Cricket Kupwara. They're getting rid of danger man Jack Lone. He's walking back to the pavilion without doing anything. मनवर यहाँ पर एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज शुरुआत, हालांकि 163 रनों का विजय लक्ष्य मिला था और शुरुआती क्षणों से जो आत्मविश्वास जताया फील्ड के अंदर, अगर हम क्षेत्र रक्षकों की बात करें, जो बॉडी लैंग्वेज देखने को बनता था, जो देखने को मिल रहा था, उन परिस्थितियों में आज कमाल का न सिर्फ क्षेत्र रक्षण बल्कि गेंदबाजी का भी कमाल प्रदर्शन आज देखने को मिला विक्टोरिया कुपवारा की ओर से, और जिसके चलते इसमें मात्र 70 पे 6 विकेट गंवा दिए हैं। और निश्चित तौर पे आकिब मीर अभी भी नाबाद हैं, लेकिन एक बेहतरीन वर्तमान और महत्वपूर्ण स्थिति होगी और इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, ये एक कड़ा प्रश्न होगा। और निश्चित तौर पे क्या मुकाबला यहां से समाप्ति की ओर, लेकिन अभी भी क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो मानो इस समय गेंदबाजी का पलड़ा भारी और पूरी तरह से इस समय गेंदबाजी हावी हो चुकी है बल्लेबाजी पर। And HCC Reds under the dark chant at the moment.
They are 6 down with just 4 wickets in hand, chasing 163, and now they are 70 for the loss of 6. They need to do undoable from here on. They still need 93 more runs to register victory and to lift the title of RCL, Ramhall Cricket League year 2022. और तौहीद संभवतः नए बल्लेबाज आए हैं। निश्चित तौर पे ये इरफान बाहुबली के नाम से लोकप्रिय, और वे इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जिस नाम से लोकप्रिय है मुनव्वर, आज उस प्रकार का प्रदर्शन करना होगा, और निश्चित तौर पे टीम को प्रदर्शन की क्या आज उसमें सक्षम हो पाएंगे, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या आत्मसमर्पण करेंगे अथवा अपनी टीम को अंत तक ले जाएंगे, ये एक कड़ा प्रश्न होगा न सिर्फ आकिब मीर के लिए बल्कि इरफान बाहुबली के लिए भी। Testing time. It's going to be a litmus test for the batters to come in from here on. But Jack Lone, Asim Bashir, Shaukat Nabi and Ambassador all were unable to express themselves today, and they didn't need to impress anyone. But the Diamond of Kashmir failed badly today, and that was a superb delivery from Zur Sofi that trapped him. Oh, look at that one! It could have been a reflex catch. It would have been a regulation catch, but the ball changed its direction quite a bit, and Ishtiaq Rasul on that occasion unable to pass on it, unable to go ball that one. With that brace, 72 on the board for the loss of 6. 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ गालिजू कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान से। और इस समय गंभीर से गंभीर स्थिति एचसीसी रेड्स हैंडवारा के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पामपुर, एमएचएम आर्को फैन स्टेशन, रियल स्टेट पामपुर, पेशन फीस्टा एंड तब स्पोर्ट इंडिया। अगली गेंद को निकाला, 1 रन पूरा कर रहे हैं, और 1 रन के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ निश्चित तौर पे 73 पे जा पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद जस्ट बुखारा का, जो कि लगातार अपना समर्थन और सहयोग देते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम को, और 73 पे जा पहुंचा है स्कोर। आकिब मीर बीच मैदान में बने हुए हैं, और उनके साथ बाहुबली भी काफी कुछ निर्भर करेगा इन जो इस जोड़ी पे, और दायित्व है उनके कंधों पे कि यहां से इरफान शेख जो कि काफी महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रदर्शन बीच मैदान में करना होगा, विश्वसनीय प्रदर्शन करना होगा, और इन परिस्थिति में कड़ी परीक्षा होगी दोनों बल्लेबाजों की, चाहे वो इरफान हो चाहे आकिब मीर हो। इस ओवर में अगली बार चले सामने वाली छोर से ये गेंद, इस बार जबरदस्त प्रहार, फिर संपर्क आती हुई गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, और गेंद सीधे विराम कर विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 73 पे 6। ये पारी का 12वां ओवर 11.3 के बाद, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 90 रनों की आवश्यकता, 51 गेंदें बची है। बहुत बहुत धन्यवाद जाना खान। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि 1 रन पूरा कर रहे हैं निश्चित तौर पे, 1 रन, और वहां पर थ्रो किया था जरूर, लेकिन स्टंप्स पे नहीं लगा, और गेंद वहां पर मिसफील्ड के नतीजे से गेंद सीमा रेखा से बाहर, बाई के रूप में, उपहार के रूप में कहना चाहिए। 4 रन और खाते में जुड़ते हुए, और इस चौके के साथ ही 6 रन जुड़ते हुए कुल मिलाकर खाते में, 2 रन, और उसके बाद 6 रनों का संभव थे। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा, 2 रन दौड़ करके उसके बाद ओवर थ्रो के रूप में 6 रनों का इशारा। जी हां, एडवोकेट हिलाल 79 6 विकेट के नुकसान पर 11.4 के बाद 84 रनों की आवश्यकता, 50 गेंदें बची हैं, और इस ओवर से अब तक 9 रन आए हैं। जी हां, जमीनी छक्का, और इस बार यहाँ पे अगली गेंद पे कोई रन नहीं बना है, प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है, और धीरे धीरे से गेंदों और रनों के बीच जो अंतर है, जो आंकड़ा है, वो और ज्यादा गंभीर होता हुआ, और आस्किंग रेट धीरे धीरे से बढ़ता हुआ। निश्चित तौर पे आस्किंग रेट 10.29 तक पहुंच चुका है। ये गेंद बार फिर प्रहार करने की कोशिश, फिर सफलता नहीं मिली, समझ नहीं पा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, खड़े खड़े स्ट्रोक देने की कोशिश, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। 79 पे 6, 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 48 गेंदें, 84 रन, और यह है लेखा दिलचस्प आंकड़ा, 8-4 और 4-8, यह है आंकड़ा। अगर इस मुकाबले की बात करें, 48 गेंदें बची है, 84 रन चाहिए, और 4 विकेट हाथ में। नाबाद बल्लेबाज आकिब और इरफान, और किस प्रकार से यहां से वो प्रहार करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि धीरे धीरे से मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में है, और एक आकर्षक बल्लेबाजी करनी होगी। अगर यहां से 1-2-3 ओवर जो है आकिब मीर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अंत तक खेलते हैं,
तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है। परिस्थितियां गंभीर है, लेकिन इन परिस्थितियों में क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल है, लेकिन काफी परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे से इस समय लगातार एक प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते पूरी तरह से बल्लेबाजों को आजादी नहीं मिल रही है स्ट्रोक खेलने की। दबाव की स्थिति बने हुए 12 ओवर पूरे हो चुके हैं और 79 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का नाम बाकी, गेंदें बची हैं 48 रन चाहिए 84। और एक बार फिर संभवतः ज़हूर सोफी जो कि अपने कोटे का 30 ओवर लेकर के 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन 2 सफलताएं। सबसे सफल गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन। पारी का 13वां ओवर लेकर के तैयार, पहली गेंद और तोड़ना शुरू किया अंपायर के बगल से राइट आर्म और ओवर द विकेट की गेंद इस बारिश को निकाला। वहां पर खिलाड़ी के पास भेद नहीं पा रहे हैं, मानो ऐसे स्टील का स्तंभ लगा हुआ आशित रक्षण द्वारा। आसिफ रसूल थे उस ओवर, 1 रन और 80 रन पहुंच चुका है स्कोर और अब 83 रनों की आवश्यकता। Sophie. Oh, he's playing it back to the bowler. It was a bounce catch. Oh, shot for run out. Shot for run out. They're still appealing. An umpire turned down appeal. 80 for the loss of 6. They need 83 and 45 legitimate balls. Won't be easy. 7.5 overs remaining. 7.5 overs remaining. They still need 83. It took HCC Reds 75 balls to get those 80 runs. Here goes Zoor Sophie again. 80 for 6. Zoor to Irfan Sheikh, and Irfan Sheikh unable to make any sort of contact again, beaten again. Now it comes down to 83 needed or 44 balls. Each and every dot ball is going to put pressure on HCC Reds, and asking rate will keep climbing. It is now 11.32 Nazir. 11.3 हर बीती गेंद के साथ इस समय आस्किंग रेट बढ़ता हुआ और निश्चित तौर पे इस समय कठिन परिस्थितियां होती हुई एचसीसी रेड्स के लिए। ये गेंद ज़हूर सोफी की और बाहर अंतिम समय हल्के से उसको प्लेस किया उस और खिलाड़ी शानदार क्षेत्र रक्षण, जितनी भी प्रशंसा की जाए और जी जान लगाते हुए इसमें विक्टोरिया क्रिकेट क्लब के सभी क्षेत्र रक्षण और बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ और लगातार 1 रन के साथ ही प्रयास जरूर हो रहा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 81 पे 6, 12.5 के बाद आखिरी गेंद 13वें ओवर के 82 रनों की आवश्यकता। 43 गेंदें बचे हैं और यहां से मुकाबला अब धीरे धीरे से, हालांकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थिति में अगर मुकाबले की बात करें तो पलड़ा इस समय भारी है गेंदबाजी का। इस ओवर में अगली बार ज़हूर सोफी आखिरी गेंद लेकर के 13वें ओवर की राइट आर्म, उनकी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल पूरी तरह से छकाया गेंद और बल्ले का कोई संघर्ष नहीं हुआ और गेंद सीधे जाके थमाई विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें कुल योग 81 6 विकेट के नुकसान पर इरफान शेख 7-8 गेंदों से, आकिब मीर 21-22 गेंदों से। धन्यवाद स्कोरर तजम्मुल खुर्शीद अपना प्यार और विचार देने के लिए और लगातार हमें हर आंकड़ा हमारे साथ शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और ऐसे में क्रिकेट का हर आंकड़ा हमारे पास पहुंचाते हुए स्थिति 81 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। 7 ओवर का खेल बचा है, 42 गेंदें और 82 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और लगातार कुछ नेटवर्क की सुविधा न होने के कारण हमें थोड़ी सी दिक्कत होती हुई, लेकिन बहुत जल्द इसमें कार्य हो रहा है। निश्चित तौर पर बने रहिए हमारे साथ। संघर्षपूर्ण निर्णायक क्रिकेट का महासंग्राम, महायुद्ध क्रिकेट की भिड़ंत और घमासान बीच मैदान में चलता और अब तक पलराबारी कहा जा सकता है विक्टोरिया क्रिकेट क्लब का। 81 पे 6, 13 ओवर की समाप्ति, 82 रनों की आवश्यकता, 42 गेंदें बची हैं और 4 विकेट हाथ में है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, लेकिन मुकाबला इस समय शांत धीमा क्रिकेट बीच मैदान में एक आकर्षक वातावरण, तेज धूप, तापमान कमाल का और ऐसे में लगातार मुकाबला अंतिम चरण में पहुंचता हुआ। तजम्मुल कबीर बहुत बहुत धन्यवाद। पहली गेंद ऑप्शन से काफी बार पीछा किया था गेंद का, वाइड का इशारा एडवोकेट हिलाल द्वारा और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता 82 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का 14वां ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का दायित्व बिलाल के पास और देखना है बिलाल किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं और कैसे वो गेंदबाजी करेंगे। हालांकि जिस गेंदबाजी के लिए वे जाने जाते हैं आज उसका प्रदर्शन करना होगा, वो पैनापन दिखाई देना होगा इस गेंद में। क्या वो ऐसा कर पाते हैं अथवा नहीं, उनके सामने संभवतः बिलाल अथवा इरफान। ये गेंद बाहरी किनारा प्रयास किया था, सफल बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। 1 रन और खाते में जोड़ता और 1 रन के साथ ही आगे स्कोर बढ़ता 83 पे जा पहुंचा है।
6 विकेट के नुकसान पर 83 रन बन चुके हैं और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 80 रन बनाने हैं। बची हुई 41 गेंदों से 41 गेंदें 80 रन। आकिब मीर सामना करने के लिए तैयार इस ओवर में अगली बार। बिलाल है गेंदबाज। 80 रनों की आवश्यकता, 41 गेंदें और खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक आकिब मीर के बल्ले से। और निश्चित तौर पे जब तक आकिब मीर बीच मैदान में बने हैं, समझता आशाएं लगी हुई हैं, उम्मीदें कायम है वहां पर उनके समर्थकों, क्रिकेट के दीवानों द्वारा कि उनमें वो क्षमता है, वो अंत तक इस मुकाबले को ले जा सकते हैं। और इस चौके के साथ ही 87 पे 6 और अब 76 रनों की आवश्यकता, 40 गेंदें बची। With that boundary score propelled to 87 for 6. Over number 14 we are in. 2 balls down into over number 14. Bilal is bowling. Bilal for the first time. He's operating, has conceded 6 so far of his 2 balls with 4 balls to come. 76 needed. 40 balls. Asking rate. Required rate is 11.40 and that one straight backward a point. Zurpi to the fielder. Just a run. With that single scope propelled to 88 for 6. 75 needed in 39 balls. Required rate is 11.54. Current run rate is 6.52. And we have got a wonderful viewership on Jaga Sports Time this afternoon, and you can share the live broadcast to your level best so that we can have a sizable viewership this afternoon to witness the great game of cricket, and you will be getting your money's worth. Fourth ball comes in and Irfan shakes and is it. That's gone. A towering blow over mid wicket, over Kokora to be precise. 6 more, half a dozen to this man. Is something in this match. I think there are a lot of twists and twirls in the match remaining still, and this match is really going down to the wire. If this man live up to his expectations, if he can produce some wonderful hits off his blade, and with that 6 score propelled to 94, 69 needed in 38 legitimate balls, and our required rate comes down to 10.89 Nazir. आकर्षक स्ट्रोक, 6 रन और निश्चित तौर पे दर्शनीय स्ट्रोक के साथ स्कोर आगे पहुंचा दिया। 94 पे 6, 13.4 के बाद 38 गेंदों से 69 रनों की आवश्यकता। और निश्चित तौर पे भले ही परिणाम कुछ भी हो, क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी चाहते हैं कि एक आकर्षक विश्वसनीय मुकाबला देखने को मिले। 13 ओवर के बाद अगर विक्टोरिया क्रिकेट क्लब की बात करें तो 79 पे 4 और यहाँ 94 पे 6। ये दर्शाता है किस प्रकार से, हालांकि रनों के मामले में उनसे आगे इस बार फिर होगा इस्तेमाल, प्रहार करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। हालांकि खुश नहीं अपने स्ट्रोक से, निराश है वहां पर इरफान। और इस ओवर की अगर बात करें 1, 4, 5, 6 और 12 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। अच्छा खासा ओवर करता हुआ आईसीसी रेड्स के दृष्टिकोण से, और इरफान और आकिब मीर में वो क्षमता है और निश्चित तौर पे इस प्रकार का प्रदर्शन चाहिए। क्रिकेट के आए हुए सभी समर्थक चाहते हैं कि भले ही परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कांटे की टक्कर का मुकाबला अंतिम चरण में, अंतिम गेंद तक ये मुकाबला देखने को मिले, और निश्चित तौर पे ऐसा तय है कि मुकाबला अंतिम गेंद तक देखने को मिलेगा। 94 रन 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद लेकर के तैयार। 37 गेंदें 69 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए एचसीसी रेड्स हंदवारा की टीम का। और अभी भी 4 विकेट उनके हाथ में है। 2 दिग्गज बल्लेबाज इरफान, जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रोक खेला, आत्मविश्वास उनका लौटा होगा और संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। वहां पे दर्शकों का शोर गूंजता हुआ, फिर जबरदस्त प्रहार, लेग स्टंप पर आती गेंद, पीछे खिलाड़ी है, देखना है रोक पाते तो नहीं। जी हाँ, रोक लिया। दूसरा रन भी पूरा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर दूसरा रन पूरा कर लेंगे। 2 रन और ओवर की समाप्ति के बाद 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर पूरे हो चुके हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 96 6 विकेट के नुकसान पर इरफान शेख 16 पे नाबाद 12 गेंदों से, और आकिब मीर 26 पे 24 गेंदों से। बिलाल 1 ओवर कोई मैडल नहीं, 15 रन। धन्यवाद स्कोरर तजम्मुल खुर्शीद। और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं, प्रतीक्षा रहेगी। और जुड़ जाइए एक संघर्षपूर्ण कांटे की टक्कर का मुकाबला गालिजू कुपवारा के इस खूबसूरत मैदान में। रामहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का ये फाइनल मुकाबला, जो कि विक्टोरिया क्रिकेट क्लब कुपवारा, और 96 रन बन चुके हैं। एचसीसी रेड्स की टीम इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रही है। 163 रन बनाने हैं और अब तक 96 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर में। 67 रनों की आवश्यकता, 36 गेंदें बची, 4 विकेट हाथ में है और मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में। अगर 1-2 ओवर की गेंदबाजी, 3 ओवर तक ये बल्लेबाज बीच मैदान में टिक जाते हैं तो मैं समझता हूं अंतिम ओवर तक का मुकाबला जो एक रोमांचक कांटे की टक्कर का मुकाबला तय है। 96 for 6, 6 overs remaining, 36 legitimate balls are going to come, and we'll have to wait and watch what kind of batsmanship they will be displaying from here on. It's 96 for 6, 4 share of team 100 and 76 is what they require.
67 is what they require of 36 legitimate balls. Required rate is 11.17 and current run rate 6.86. And let me take you through the fall of wickets first. First wicket falling at the score of 14, it was Akhil Bande. Second wicket falling at 36, it was Basit Dar. And third at 37, it was Asim Bashir. And Adil Kohli at the score of 38 in the form of fourth wicket. And fifth one biting the dust, Shaukat Nabi at the score of 65. And sixth one was Jahangir Lone, gone in the form of 61 at the score of 70. Short pause in the game. And Victoria Cricket Club, they are in a hurdle. And if we look at this wonderful centre of Galizu Kupwara, this is the beautiful, mesmerizing centre for cricketing available here in Kupwara, Galizu. It is like that Melbourne of Kashmir, and if we look at the backyard of the centre, it is covered, it is surrounded by dense forest cover and those sky-touching peaks like that of Dharamshala in Himachal Pradesh, and it's a wonderful centre. And if we look at the outfield, it is electric quick, and it's a beautified centre, picturesque scenes around the park. And question is, who can take them over the line today? And which one of these two out in the middle is going to live up to his expectations and is going to roll with the bat loud and clear that I'm in and I'm going to announce myself. I'm going to take HCC Reds home with these. But on the other side, on the other hand, Victoria Cricket Club, they got big names in the lineup. They got Badgaum Express there. They got other bowlers to tease and to deny HCC Reds any chance of winning this one and lifting the title for the first time. While the two umpires are having a word at the moment. Mid-pitch conference is going on between the two umpires, Advocate Hilal and Tahir Nabi. But the question is that which team is going to win this one and which team is going to lift to the title? Jalil but can't join the team there. But other persons, they were in a hurdle, now disposing out again. Last 6 overs remaining, 36 balls are going to come, 67 needed. And the required rate is 11.17, current rate is 6.86, which isn't going to bother Victoria Cricket Club Kupwara. But Irfan Sheikh is in. He can muscle the ball, he can maroon the cricket ball, and he can really set the tone up for the good chase. Zoor Sophie is going to continue from Combox, and in the meantime, Aqib Mir will play that second fiddle. He will definitely carry on with the same pace of rotating the strike every now and then, and he will be keeping that thing in mind, and he has to just knock the ball in the gaps. And the other one has to play that big role, anchoring role, and the one-man army role with the bat. And that is Irfan Sheikh at the moment. He's on to 16 of 12 balls, and Aqib Mir is on to 26 of 24 balls. And those who are watching, share it with their friends and join us in numbers, and you will be getting your money's worth. It is the big match, much awaited. Everyone was eagerly waiting for this match, and the wait is over. Here we are. We're into the final passage of play. 36 legitimate balls, and we'll have to wait and watch. Aqib Mir and Irfan Sheikh is in, and again umpire is having a word with the spectators there, bystanders, that you may leave the field. They're within the boundary line there, and the advocate says you may leave that place because it's within the boundary, it's within the dimensions of the field, so please leave the field as early as possible. Zoor Sophie will be bowling from Comboxan, and we'll have to wait and watch. HCC Reds require, they need 67 runs in 36 ball equation. This is equation for you. This is equation for HCC Reds. 67 needed, 36 balls. Here goes Zoor Sophie to Aqib Mir. Oh, chance of a run out, and a direct it would have been tight call, but in the end that wasn't the case. Now 67 needed of 35 balls, and required run rate is going to climb. It climbs up to 11.49. Each and every dot ball is of great weight here, is of a worth and weight in a gold at this crucial juncture. What is the need of an hour is to go for the full Monty. One should try to fetch some boundaries out of nowhere. Flurry of boundaries needed by HCC Reds to shift to the momentum their side. Oh, look at that turn. Pitched up delivery. He comes shimmy. He shimmies down the track, comes bouncing down the track, advances down the track. Beaten all, ends up 96 for 6 after 14.2 balls. Nazir, required rate climbs up to 11.82. 2 dots on the trot, and this is only gonna put pressure on HCC Reds. You may carry on.
दो डॉट गेंदों के साथ दबाव की स्थिति बनी हुई और स्कोर अभी भी 96 पीछे 14.2 के बाद पारी का 15वां ओवर प्रगति पर। गेंदबाजी ज़ोहर सोफी के पास 26 पे नाबाद आकिब मीर और 16 पे नाबाद इरफान शेख। जुनैद इब्न मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल स्टार भेजने के लिए। इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। 2 गेंदें हो चुकी है, कोई रन नहीं आया है इस ओवर से। 96 रन 6 विकेट के नुकसान पे 67 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए 34 गेंदों से। ये गेंद एक बार कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत स्ट्रोक, बॉलर बैक ड्राइव करना चाहिए। गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ ही तहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 100 रन पूरे होते हुए। शाहिद बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रन के साथ ही अब 63 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए और निश्चित तौर पे अभी भी 33 गेंदों का आना बाकी है। 33 गेंदें 63 रन चाहिए, 100 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा। और ऐसे में अगर विक्टोरिया क्रिकेट क्लब की बात करें तो 14.3 पे 86 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर जब वे बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में अगली बार ज़ोहर की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंतिम समय तक गेंद के आने का इंतजार किया, उसको निकाला। 1 रन पूरा कर रहे हैं, 1 रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। 101 62 रनों की आवश्यकता, 32 गेंदें बची हैं। 101 6 विकेट के नुकसान पर HCC रेड्स की टीम अच्छी रन दी थी दोनों बल्लेबाजों की। सिंगल्स डबल से स्ट्राइक रोटेट, खराब गेंदों को सही नसीहत, अच्छी गेंदों का सम्मान और निश्चित तौर पे ये कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन। एक साझेदारी बीच मैदान में पनप रही है इरफान और आकिब मीर द्वारा। आकिब मीर 31 पे नाबाद 28 गेंदों से, इरफान शेख 16 पे नाबाद 12 गेंदों से। ज़ोहर सोफी चले उनकी ये गेंद और इस बार कड़ा प्रहार करना चाहते लेकिन अंतिम समय में कलाइयों के सारे तिरछे बल्ले के साथ मोड़ा उसको 1 रन के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 102 और अब 61 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 31 गेंदों का आना बाकी है। मुकाबला संघर्षपूर्ण स्थिति में अंतिम चरण में पहुंचता हुआ और निश्चित तौर पर किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार का मुकाबला जिस प्रकार से शुरुआती क्षणों में विकेट लगातार अंतराल के बाद गंवाए थे HCC रेड्स हंदवारा की टीम ने। 61 needed in 31 balls. Zohar Sofi last time goes and bowls to Akimir, and Akimir comes down the track. Is he going to fight the second one? Is he going to push for the second? But Jalil does well. Safest man on the park with that single scope propelled to 103 for the loss of 6. 60 needed in 5. It was at the rate of 12 from remaining 30 balls. They need 60 at the rate of 12 with 4 wickets in hand. Won't be easy for HCC Reds to win this one and to defeat and beat Victoria Cricket Club at this very centre of Gullies Kupwara. और इस समय स्थिति ये बनी हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें, आखिरी 5 ओवर का खेल बचा है, यानी कि निर्धारित 30 गेंदें 60 रन बनाने हैं, तो निश्चित तौर पे आसान नहीं रहेगा। लेकिन इन परिस्थितियों में आके मीर और इरफान जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अगर वो अंत तक खेलते हैं तो मैं समझता हूँ मुकाबला कांटे की टक्कर का। बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत रोमांचक कांटे की टक्कर क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट का महायुद्ध इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। 30 गेंदें 60 रनों की आवश्यकता। आकिब मीर और इरफान शेख की जोड़ी बीच मैदान में बने हुए। 103 पे 6 15 ओवर की समाप्ति के बाद और देखना है इन परिस्थितियों में किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला और निश्चित तौर पे आकिब मीर होंगे सामने बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी का प्रदर्शन देखना है बिलाल के हाथ में। इरफान 17 पे नाबाद 13 गेंदों से, आकिब मीर 32 पे नाबाद 29 गेंदों से और बिलाल इससे पूर्व 1 ओवर कोई बैटर नहीं, 15 रन। पहली गेंद निकाला उसको सीधे वहां पर क्षेत्र रक्षण के पास और जब तक वे फील्ड करते दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और जब तक गेंद विकेट कीपर समझते गेंदबाज के हाथ में आते और 2 रन और खाते में जुड़ते हैं। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 100 और समझते 5-6 विकेट के नुकसान पर 58 रनों की आवश्यकता। 29 गेंदें और धीरे धीरे से प्रयास हो रहे हैं। आकिब मीर इस समय 34 पे नाबाद 30 गेंदों से और इरफान शेख को उनका सहयोग करते 17 पे नाबाद 13 गेंदों से। 105 पिछे 58 रनों की आवश्यकता, 29 गेंदें बची है। क्या कमाल का स्ट्रोक, हवाई रास्ता और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों का इशारा एडवोकेट हिलाल का आता हुआ। जी हां, आपने उस चरपरित अंदाज में उन्होंने निर्णय दिया और 6 रन और जोड़ दिए वहां पर खाते में। इस छक्के के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 111 नेल्सन स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर 15.2 के बाद 28 गेंदों से 52 रनों की आवश्यकता और तहलका खेज घमासान बीच मैदान में बना हुआ और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है इस मुकाबले का। जिस प्रकार से वातावरण और बल्लेबाजी बीच मैदान में आकिब मीर नाबाद है इस समय 40 पे 31 गेंदों से सामना करने के लिए तैयार। 111 पे 6 15.2 के बाद 28 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता। ये गेंद लेग स्टंप पर हल्के से दिशा दे दी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ये है आकिब मीर, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और निश्चित तौर पे उन्होंने अभी आस नहीं छोड़ी कि भैया अभी भी दमखम रखते हैं और इस मुकाबले को अंत तक ले जा सकते हैं।
13 गेंदों से 44 पे नाबाद, 32 गेंदों से और कुल मिलाकर 27 गेंदों से 48 रनों की आवश्यकता, 115 पे 6। 48 need, 27 balls, an expensive continuing, 12 of first 3 balls. And where the other 3 balls are gonna go, we'll have to wait and watch. Where the other 3 balls are gonna go, we'll have to wait and watch. Where this one is going, let's find it out. It's ball number 4, 115 for 6. In comes Bilal to Aqib Mir and down the leg side, way down the leg side, wide it is. One more run added to the tally. Bowler trying to shorten the length of the ball and pace of delivery way down the leg side, unable to maintain that line and discipline. With that run, they need now 47 in 27 balls. It comes down to required rate comes down to 10.44 and over. They have 116 for 6 after 15.3 balls. Halfway down into the 16th over. 47 needed, 27 balls. What a match and what a crowd around the park. In comes Bilal, ball number 4. We'll have to re-bowl that one. In comes Bilal to Akimir, and Akimir nudges it onto the onside. Are they going to come back for the second? It looks like chance of a run out, but Jalil is late. And in the meantime, both the batters are back for the second. With that brace, scope rope out to 118. 45 needed, 26 balls with 4 wickets in hand. And Akimir on to 46 of 33 balls with a strike rate of 139. 4-4, 3 fours and 2 magnanimous hits out of the park. देखिए पहले ही चर्चा कर चुके हैं, टिप्पणी कर रहे थे कि आकिब मीर का विकेट पे बना रहना काफी महत्वपूर्ण होगा और यदि वो अंत तक खेलते हैं तो मुकाबले का परिणाम कुछ भी हो सकता है। और उसी दिशा में, उसी मुद्रा में इस समय बीच मैदान में आकिब मीर कमाल की बल्लेबाजी, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम। निश्चित तौर पे क्या लाजवाब पारी, और इन परिस्थितियों में जबकि टीम की नैया डूबी हुई थी, संकट की स्थिति बनी हुई थी, और ऐसे में उन्होंने लाजवाब और कमाल का प्रदर्शन किया। 118 पे 6, 15.4 के बाद 45 रनों की आवश्यकता, 26 गेंदें। इस गेंद को निकाला उस और खिलाड़ी हैं, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे और निश्चित तौर पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में तालमेल का परिचय देते हुए और 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ ही लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशीलता देते हुए 120 पे पहुंचाया 15.5 के बाद। 25 गेंदों से 43 रन चाहिए और निश्चित तौर पे एक शॉर्ट रन का इशारा वहां पर अंपायर द्वारा, तो निश्चित तौर पे 119। और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 44 रनों की आवश्यकता। डिजिटल स्टार्स के जरिए आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। 25 गेंदों से 44 रनों की आवश्यकता HCC रेड्स की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए और RCL का खिताब अपने नाम करने के लिए। संघर्षपूर्ण कड़ा प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में चलता हुआ और क्रिकेट का हर समर्थक जो यहाँ पर आया हुआ है इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, अंतिम समय में इसको दिशा दे दी, रन लेना चाहते थे वहां पर आकिब, खतरे से खाली नहीं था रन, लेकिन अंतिम समय में अपने स्ट्रोक को वहां पर खींचे बगैर किसी रन के। शाबू भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल स्टार भेजने के लिए। ओवर पूरा हुआ निश्चित तौर पे 24 गेंदें और 119 इस समय कुल योग है। 24 गेंदों से 44 रन बनाने हैं और एक बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन होगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिजिटल स्टार के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। जुड़ जाइए और एक संघर्षपूर्ण कड़े प्रदर्शन और निःशुल्क मुकाबले में हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद लीजिए। 24 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता। आकिब मीर इस समय नाबाद है बीच मैदान में। और एक बार फिर आप इस मैदान के विजुअल्स देख सकते हैं, क्या खूबसूरत मैदान है सजा हुआ इस महामेले के लिए। और सौराष्ट्र रामहल के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं और खासकर भट्ट मूसा को जाता हुआ। और अगर हम बात करें इस मैदान की और चारों ओर देखिए किस प्रकार से खचाखच स्टेडियम बना हुआ, दर्शक क्रिकेट के दीवाने और प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। और इस समय वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे इशराक के हाथ में है गेंद और इन परिस्थितियों में कप्तान ने उन्हें याद किया है किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे। और इस समय आप विजुअल्स देख सकते हैं और किस प्रकार से खचाखच स्टेडियम चारों ओर बना हुआ है। विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं आपको। पूरी तरह से ये मैदान गालिजों का भरा हुआ दर्शकों से इस निर्णायक कांटे की टक्कर के मुकाबले का आनंद लेते हुए। बेहतरीन वातावरण और अच्छी खासी संख्या में क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी आए हुए इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। बड़ा मुकाबला, फाइनल और कांटे की टक्कर इस समय बीच मैदान में जारी। 24 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता HCC रेड्स की टीम को इस मुकाबले को
जीतने के लिए। अहमद इरफान का बहुत बहुत धन्यवाद। इशनाक के हाथ में है गेंद, 24 गेंद, 44 रनों की आवश्यकता, 4 विकेट हाथ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आकिब मीर और इरफान की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। आकिब मीर समय नाबाद 47 पे मात्र 3 रन दूर अपने अर्धशतक ये पारी से 35 गेंदों का सामना किया, और वहीं पे भरपूर समर्थन और सहयोग करते इरफान शेख 13 गेंदों से 17 रन बनाकर। इश्तियाक रसूल 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन कोई सफलता नहीं, और उन्हें बुला लिया गया है। लोन फारूक का भी बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटली हमें सम्मानित करने के लिए। और इसमें लगातार फील्ड में परिवर्तन होता हुआ एडवोकेट हिलाल और ताहिर नबी जो कि इस मुकाबले का नेतृत्व करते हैं। अंपायरिंग की अगर बात करें, इशनाक चले, 24 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता, पहली गेंद, और इस बार जबरदस्त प्रहार ऑफ स्टंप पर लपेटने की कोशिश, सफलता नहीं मिली, और डॉट गेंद के साथ, हर डॉट गेंद के साथ इसमें न सिर्फ आस्टिंग रेट बढ़ता हुआ बल्कि एक दबाव की स्थिति आती हुई 23 गेंदों से 44 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए HCC रेड्स हंदवाड़ा की टीम को। 44 needed, 23 balls down to the last balls. What a match, what a tournament we have had here in North Kashmir's Kupwara district, RCL, and we are down under with a great game of cricket here at the center of Gullies of Kupwara. 44 needed, 23 balls. First ball ended up in a dot. Ball number 2 coming up. Ishnaaq says, Nasir Kumar, you may stay there at the boundary. Second ball up the outside edge, goes down towards the third man, and fielder does well, sends in the quick return, just a single. Now 43 needed in 22 balls. Which way this match is gonna go, we'll have to wait and watch. We can't say until the last ball is not bowled, but Ishnaaq is operating. He's bowling with lot of maturity, discipline in, but he has bowled 2 balls conceding just a single. Now HCC Reds need 43 in just 22 balls. 43 रनों की आवश्यकता, 22 गेंदें बची हैं 11.73 के आस्किंग रेट के साथ, और एक कड़ा मुकाबला इस समय बीच मैदान में। यहां से किस और मुकाबला झुकेगा, क्या परिवर्तन होगा इस मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। नाग चले, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले से, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड किया बगैर किसी रन के। एक और डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद, और इरशाद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बिंदी गेंद के साथ ही यहां पर कहना चाहिए 120 पे 6 और 43 रन बनाने हैं 21 गेंदों के साथ। यहां पे बेहतरीन प्रहार करना होगा, बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता है, क्या उसमें दोनों बल्लेबाज सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं। जुड़ जाइए हमारे साथ एक संघर्षपूर्ण और आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार नाग की गेंद, फिर कदमों का इस्तेमाल, चौथाई भरी गेंद, इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया और लंबाई पे नियंत्रण करते हुए छक्का ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, एक और बिंदी गेंद, और निश्चित तौर पे दबाव की स्थिति बनती हुई। Of course, pressure is mounting and climbing. Too many dot balls, too many balls cheered up by Akimir in this over. And just Bukhara and Rafi Wani both are watching in between. Goes and bows. That's a good shot. That's a shot. And that will earn him a boundary. Ishnaaq is spitting fire and venom on Jalil, but what can he do? That was absolute marvelous shot, and it deserved a boundary. It got a boundary in the end. Ball number 5 goes all the way down to the boundary, and he brings up his 50. He used 38 balls for his 51. Well deserved, richly deserved, and he soaked that round of applause, soaking in that round of applause from the crowd. Now 39 needed, 19 balls. Required rate is 12.32. Current run rate is 7.37. 19 balls, 39 needed. Too many dot balls in this over. Last ball, Akimir on strike. Ishnaaq goes up the outside edge. That's a boundary, and that's that boundary over the third man, or over the fly slip down to the third man boundary, brought to you by Just Bukhara. And with that boundary, score propelled to next level. They are now 128 for the loss of 6. जी हाँ बिल्कुल, और इस समय स्टोक बेहतरीन खेला और इस तरीके से ये जस्ट बुखारा चौका लगता हुआ, और इस चौके के साथ ही 128 पे 6 17 ओवर की समाप्ति के बाद वर्तमान रन गति 7.53, रिकॉर्ड रन रेट 11.67, और 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। 128 पे 6, 55 पे आके बीर नाबाद 39 गेंदों से 5 चौके 2 छक्के, इरफान शेख 18 पे नाबाद 15 गेंदों से 2 छक्कों के बद से। और इस समय अगर बात करें 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 23 रन कोई सफलता नहीं। इश्तियाक रसूल
लेखा जोखा कि अगर हम बात करें 35 रन बनाने हैं 18 गेंदों से। Nazir, Jacklon like over needed here by HCC Reds. 22 off an hour, that will seal the deal in style for HCC Reds. But who knows? And we shall request our beloved viewers on Take Sports Time. Write us, drop in your comments, and do write us which team is gonna win this one and which way this game is gonna go from here on. You can write us with 4 wickets in hand. You can predict your winner for today and your player of the match here at this crucial juncture, because 18 balls remaining. They need 35 in 18 balls. An over can seal the deal for HCC Reds Handwara. होंगे, गेंदें बची हैं 18, रन चाहिए 35। जो है कृपया करके वो मुकाबला इस समय बीच मैदान में चल रहा है। निश्चित तौर पर 18 गेंदों से 35 रनों की आवश्यकता। एक बाद आग उगलता हुआ उनका बल्ला, और इन परिस्थिति में जबकि टीम को आवश्यकता थी, इरफान ने उनका भरपूर सहयोग करते 18 पे नबाने 15 गेंदों से 18 गेंदें 35 रनों की आवश्यकता। उस ओर से गेंदबाजी बिलाल के पास, चले पहली गेंद लेकर 18 से 35 करारा है चौक, ये लगा जस्ट बुखारा चौका, और इस चौके के साथ ही अब 31 रनों की आवश्यकता 17 गेंदों से। कमाल का प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में, और निश्चित तौर पर दर्शक भी अपने अपने स्थान से खड़े होते हुए, क्या कमाल का प्रदर्शन, क्या बल्लेबाजी का प्रदर्शन। निश्चित तौर पे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार का मुकाबला, वो भी रमहाल क्रिकेट लीग वर्ष 2022 का फाइनल बीच मैदान में चलता हुआ। तौफीक लोन का बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटली हमें सम्मानित करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, लोन अशरफ बहुत बहुत धन्यवाद। 17 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता, और बीच मैदान में इरफान 22 पे नाबाद 16 गेंदों से, आकिब मीर नानसा की चोट पे 55 पे नाबाद 39 गेंदों से। 17 गेंदें 31 रनों की आवश्यकता। चले और बाहर जबरदस्त प्रहार मिस किया, वहां पर रन पूरा कर रहे हैं, थ्रो किया स्टंप्स पे, लेकिन निश्चित तौर पे दूसरा रन पूरा कर रहे हैं, और 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ ही 29 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदें बची हैं, और मुकाबला किस ओर जाएगा, क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस आकर्षक और रोमांचक मुकाबला का। 16 गेंदें बची हैं, 29 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 16 balls, 29 needed. Irfan Sheikh is on strike. HCC Reds at their lone ray of hope is out in the middle. 16 balls, 29 needed. Bilal with ball number 3. Irfan is on strike. Oh, what a delivery. Yoking him up. Are they going to go for the second? Are they going to come back for the second? And Irfan in the end made it with ease. Back-to-back doubles. Back-to-back braces. And with that brace, score propel, they need now 27 and 15 balls. और आकिब मीर का देखिए जिस प्रकार से वो विकेट के बीच तोड़ते हैं, युवा 17-16 वर्ष के खिलाड़ी, और कमाल का प्रदर्शन इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से आवश्यकता थी टीम को। 27 needed in 15 balls. 27 needed, 15 balls, ball number 4. Bilal comes in. Oh, what a delivery. Change of pace. Great presence of mind. And Irfan Sheikh can't do very much. Beautiful delivery. And he was unable to pounce onto that run. Now 14 balls, 27 needed. 2 big hits will seal the deal for HCC Reds here. And that will seize the initiative to larger action in favor of HCC Reds. And 14 balls, 27 to get. That expensive of Jacklon is costing the match heavily at the moment. 14 balls, 27 needed. Ball number 5. What a shot, but there is protection. Just a single up it. Now they need 26 in 13 balls. What a match. What a game of cricket. Who would have thought that this match will go down to the wire? But I promised you earlier on at the start of the innings, this match is going to go down to the wire. And we are in for a nail-biter here for 13 balls. 26 needed with these two out in the middle, and disciplined crowd to larger extent we can say. Yeah, of course, heads up to the crowd, the way they showed their balance today, sheer balance in their stands. And a love to Kupwara in the meantime. Last ball coming up, nicely driven, flicked away off his pad. So they're going to come back for the second, and Amasito says I won't be allowing you to go back for the second. 25 needed in 12 balls. Nazir, it's over to you.
गेंदे बची है 12 रन चाहिए 25। तनवीर हमें सम्मानित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल का वातावरण और इस समय दर्शक का बेहतरीन मुद्रा में इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और मुकाबला अंतिम चरण में मात्र 12 गेंदें बची हैं और 25 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए HCC रेड्स को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आकिब मीर बीच मैदान में बने हुए 138 पिछे 18 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता। अगर रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो 12.5, और निश्चित तौर पे ताबड़तोड़ मुकाबले में आप इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन क्या होगा, इस समय हवाएं तेज चलती हुई बीच मैदान में, लेकिन कमाल का वातावरण है और दर्शक का अपने अपने स्थान पे दिलों के धड़कनों को थामे हुए कि अंततः इस मुकाबले का क्या होगा। 12 गेंदों से 25 रनों की आवश्यकता। आकिब मीर ने कमाल का प्रदर्शन किया। Interesting game. Sagar has bowled out his score of 4 overs. Now it's down to the remaining 2 overs. And Victoria Cricket Club Kupwara, they're running out of resources now. Sagar has bowled his 4 overs. He bowled tight spell of 4 overs. But it comes down to the last 2 overs. Who's going to bowl the remaining 2 overs? Ishtiaq and Bilal. And I don't think this isn't going to be safe to me, but I can be wrong on a given day. Because I told you, cricket is the game of glorious uncertainties. It is unpredictable game of cricket and the way here at the center. Who knows who's going to win? Let's find it out in remaining 12 balls. अजी बिल्कुल, इस समय हालांकि थोड़ा सा विराम लिया गया है मुकाबले में और इस समय कमाल का वातावरण है। 12 गेंदें बची हैं, 25 रन बनाने हैं। इशराक पारी का 19वां ओवर और अंतिम ओवर समाप्ति बिलाल फेंकेंगे। तो इन परिस्थितियों में आकिब मीर और इरफान सामने होंगे। किस प्रकार का प्रदर्शन क्या होने वाला है इस मुकाबले का, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के मंच से और मजा लीजिए। डिजिटल स्टार्स के जरिए भी आप हमें सम्मानित कर सकते हैं। आज के दिन एक बड़ा मुकाबला, ऐतिहासिक क्षण है इस मुकाबले के, और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज वातावरण यहां पर देखने को मिला, प्रेम यहां पर देखने को मिला, और यहां का जो ये क्राउड की अगर हम बात करें, यहां आए हुए दर्शकों की बात करें, कमाल का प्रेम और प्यार लेकर, और निश्चित तौर पर आज समाप्ति की ओर लेकिन एक संदेश देके गई है, वो है प्रेम जो आज क्रिकेट के प्रति उन्होंने दिखाया। Of course, and we have a great comment coming in from Kanchai. That's why fitness and stamina is compulsory, and that's what you need in the longer run, and you need to keep yourself fit. And 12 balls. HCC Reds Handwara down to Ishtiaq Rasul with the ball. And on strike will be Akib Mir and Irfan Sheikh out in the middle. 12 balls, 25 needed. Last 2 overs coming up. Crowd on their toes. So is a comeback. Charge it up. Ball 1 goes away from us. Goes far away from us. Ball 1 pulled away. Chase for a match to the boundary. For more. And it's HCC Reds brought to you with this boundary. Brought to you by just Bukhara. But that was a wonderful punch and pull up the back foot. Half pull, half punch. But what a shot, Akib Mir. With that boundary, 21 needed. 11 balls. Game on here at the center. इस समय परिस्थितियां गंभीर। गेंदबाजी इशनाग के पास, क्या नाग इस समय आग उगलेंगे अथवा आकिब मीर जो है वो तीर चलाएंगे। तो एक कमाल का प्रदर्शन इस समय बीच मैदान को देखने को मिल रहा है। 21 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदें 21 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए। और But it's going to be an interesting game of cricket. Who would have thought that this match will go down to the wire like this? Unbelievable scenes around the park. Everyone is charged up. Gentle breeze is on its way, and we're still waiting when it's going to make those Mexican cycles. But it's 90 needed of remaining 10 balls. Ishtiaq Rasul is bowling. Ishtiaq Nag, and on strike is Akib Mir, and it's between Ishnag and Akib Mir out in the middle. Here goes. Great contest. What a shot! An excellent shot! What a man! Akib Mir, you beauty! With that boundary, HCC Reds closing in on a victory. 15 needed in 9 remaining balls. And this boundary brought to you by Just Bukhara again. आकिब मीर के बल्ले से निकला तीर और सबबते गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 15 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदें बची हैं। कमाल का प्रदर्शन, कल्पना नहीं की होगी। मुकाबला इस चरण में पहुंच जाएगा और यह है क्रिकेट की खूबसूरती। महानता बीच मैदान में दर्शते हुए इशनाग जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए हैं, और उनके सामने आकिब मीर क्या कमाल का स्ट्रोक खेला, और निश्चित तौर पे क्रिकेट की भाषा में कहें तो तीर से कम नहीं मनोवर। Absolutely ripper of a shot, and he nailed it to perfection. Might have click in the com box. 9 balls, 15 needed. 1-6 will seal the deal largely in favor of
HCC Reds Handwara. One big hit needed at this crucial juncture. HCC Reds require 15 of 9 balls. Ball number 4, Ishna goes, and Akimir is beaten. It comes down to the 8 balls. 15 needed of 8 balls. This is equation 4. Is it a simple one? Is it a complex one? Well, I don't know. The two batters know very well. 15 needed of 8 balls. What a tournament we have had here in North Kashmir. RCL, 16 teams down to these 2 teams. High octane coming up Beladview's way. Oh, shot! What a shot! Excellent shot! Excellence! Over backward upon, gorgeous! Stumped us! Stand and deliver! Now they need 9 runs in 7 balls. What a man! And Akimir is proving its worth today. What a man! He's on to 72, and he made it crystal clear today entire valley that you should understand why I am Mr. Consistent. And for the first time, Nazir, I believe that. I promise you that I was the first commentator in the valley to throw out his Mr. Consistent. Now they need 9 in 7 balls. 7 गेंदों से 9 रन और आकिब के तीर चलते हुए बीच मैदान में नाग चले कदम एकदम छक्का स्कोर बराबर हो गए हैं और 6 गेंदों से 1 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। कमाल का इस समय दर्शक अपने अपने स्थान से खड़े हो गए 78 बेदा बाद। क्या कहना कमाल की पारी इस समय आकिब द्वारा। Crowd is going berserk. What a match! Who would have thought that HCC Reds down and under this time round in 2022. This has been a nightmare season for HCC Reds, but today it will definitely heal those wounds, and it will definitely dress those wounds today. This final victory here at the center. It is time for the celebration. And Akimir, what a man! 78 unbeaten. What a knock! Unstoppable, unbelievable, formidable batting from this man. What an enterprising innings. And HCC Reds closing in on a victory. Just need a poetry run to lift to the top. Need just a run to win this one. And unfortunately, and the crowd trying to surround the com box, and network isn't working properly. Very sorry to say that. And people are unable to understand that they are playing a spoiled sport here, and I request them to stay away from the com box area. In the meantime, HCC Reds lead, or 3 runs needed by HCC Reds in remaining 6 balls. What a match! Can you believe it's gone down to the wire? 3 needed, 6 balls. And Jalil Bhatt brought into the attack. Irfan Sheikh on strike. HCC Reds on one end. They are on their toes. They want to invade the ground. But Jalil Bhatt from other end is going to bowl. 3 needed. 6 balls remaining with these 2 batters out in the middle. Akib Mir and Irfan Sheikh. Irfan Bahubali on strike. And the umpiring sensation of the valley, Alim Dar of Kashmir, Advocate Hilal, is the strike umpire, stand-in umpire, and we have Tahir Nabi, the leg umpire for today's match. Jalil Bhatt will be bowling. Irfan Sheikh on strike. HCC Reds need 3 to seal the deal to lift to the title. Jalil Bhatt, ball 1 coming up. Which way this match is gonna go? And beaten. Now they need 3 and 5 balls. What a match! Nazir, are we going to decide the fate of the match through super over? देखिए कमाल का इस समय मुकाबला 5 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता मुकाबले को जीतने के लिए, और इस बार दिशा दे दी वहां पर रन आउट का मौका और 1 रन हो रहा है इस मुकाबले में, और अब 4 गेंदों से 2 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दर्शक अपने अपने स्थान से खड़े हो गए हैं, चारों ओर खचाखच जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए, और इस समय एचसीसी रेड्स की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 2 रन दूर 4 गेंदों से। 4 गेंदें बची है, 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी जलील के पास, और सामना करने के लिए निश्चित तौर पर आकिब मीर। 4 balls, 2 needed. Strike, what a shot! Oh, it's gone for runs, 4 of those! Akimir, you beauty! HCC Reds are the year 2022. Yeah, I throw it out. Crowd is